Hi everyone. I want to congratulate few people here. Rajni, Harsh Jain, Anushka Di, Priyanka, Ishika Jain, Shalini, Namrata and Ashwini. All of you have submitted your homework and कुछ के लोगो वगैरह में थोड़े बहुत changes थे जो मैंने बताया भी था और अभी हम उस पे भी आएंगे like will help you create logos and everything and your podcast as well. This is great. Yeah. So I also saw in the group there was a Ayurveda podcast which I think was very relevant. Right? Also, Rajni did her first podcast. So congratulations to Rajni. Yeah, Okay. So yeah, thank you, Ayush. Thank you so much for taking out your time and doing this session for us. Those who know you really well. You don't need an introduction to them. But this is going to be a first class. I would like to share that Ayush is one of the most youngest entrepreneur that I have ever met. He is 19 years old and has already done close to $1 million in sales. Okay, that is amazing. And the work that he's doing with his podcast, with his brand building, he's working with a lot of celebrities and public speakers. And to help them personalize and create a brand which talks to their audience. Also, he's helping them to build an image across social media, not only on Instagram but on Facebook. Even if they want to have some sort of module, if they want to grow in their, to have a second stream of income, then Ayush is there for you. So I think it's going to be a very informative and relevant session for everyone, because doing podcasting is interesting, but to know how to start podcasting is a challenge. If you don't know where you want to promote it, you don't know the science behind podcasting. I think, like, people quit after one or two podcasts. So if you know it well, you know, okay, how much time you can give to podcast to see good results. And how, so I think Ayush is also be covering how to get 100 listeners for podcasts. So that I think will be really helpful for the beginners. So I think this is going to be interesting. Thank you, Ayush. Thank you for the session. I think we have 39 participants so far. Yeah, So people are what's just the joining in. So yeah? like waiting for 2 or 3 more minutes. And thank you again, Arbaz. You are is unstoppable, man. Because of you, your initiative, I am here. I have this community. I have people with me because you have taken action of teaching digital marketing for free on weekend. So few people don't know about you and what you are doing. No, Guys, no one knows about it. No one actually. I like to keep it that way. I'm sure a lot of people will be asking so many questions, because I'll be asking so many questions about podcasting. I'm really excited about this one. hi everyone, this is Ayush, and today this is the first workshop I'm doing ever in my life. So a little bit about me and my journey so far. I started really early, like when I was 16, and currently I founded a personal branding agency called iBrands, where I work with personal brands only. I'm a podcaster and a networking expert. I love to network with people and few people who know me, they know me because of my skill sets, and that is networking, right? So currently I host two podcast shows. One is Ayush Talks, another one is the Millennial Series, and I also co-host India's first public relations podcast, uh, which is PR Tales. So I have privilege to work with a lot of entrepreneurs and top digital marketers in India, and I'm mainly into sales and marketing from last 3 years. And I always love to hustle, and I totally believe in working hard. Currently, we are working with few actors and personal brands. So let me share some more things about me. These are some of the cool stuff I've worked on in the past. So at the age of 16, I worked on creating a platform into mental health where I was supposed to help, psychologists and people who are facing mental health issues, just to optimize the cost. But due to lack of mentorship, lack of fund and everything, lack of knowledge, I failed that startup. At 17, I've collaborated with more than 300 plus private colleges in India,
and I worked with them for like 1.5 years. And at 18, I joined Digital Masters Alliance, and I started working with Aviar, and he's like one of the biggest marketers in India. So I personally worked with him for like one more than 1 year, and I've done over thousand hundred in sales, 100,000 in sales. Sorry. So I've handled a team of 25 members and have managed to leverage my network a lot and created a network of successful entrepreneurs around me. And few people few friends have joined me here, so they know this thing. So these are some of the brands I personally work with. So first one which you can see is Digital Masters Alliance, and second one here is Shantanu Nikhil. It's a fashion brand. Uh, Another one here is a personal brand I've worked with for a while, like Arish Gupta is the director of Tivoli Group of Hospitality Industries, very big giant in the market. And here she is Asta Arora. She is a wedding choreographer. Few other brands I've worked with, and I'm currently working with as well. Few more, and a lot more. So, these are some of the actors and entrepreneurs and mainly personal brands I work with. So let's start the show. So today I'll be covering these topics, so which you can note down. आपको मेरे से कभी भी पूछ सकते हो अगर if I miss any of them. So you can blame me anything. So the first topic here is why to start a podcast in 2020, and why. I'll help you understand why you should start a podcast in 2020. Account setup plus distribution. The mindset of a successful podcaster. Identify your audience. How to create content. How to win the podcast game, even if you are not a good communicator. What tools you can use to schedule a podcast, and how you can make money. Here, I'll also share the future of podcasting, networking tips, how to invite people on your show, plus a few bonuses here are how to get your first 100 listeners, 100 plus podcasting tips by top podcasters, and get a chance to invite me on your show, on your first show. I don't know. Many will be taking action, I'm sure, after this workshop. So I'm very excited to come on your show. How many of you are excited? Let's see in the chat how many of you are excited. Thank you, everyone. Thank you for the love. So why to start a podcast in 2020? Let's understand first. But before that, I want to ask all of you, how do you want to position your brand in the market? Please add in the chat section how exactly you want to position your brand in the marketplace. For example, I'm doing a podcast which is the Millennial series, and I want to help entrepreneurs and millennials, enhance their skill sets and build their ideas into reality. So this is how I want to position myself, and I want to be someone who will be known for creating opportunities only for millennials. So that's what the brand persona I have. So what is your brand persona and how do you want to position yourself? Shivans is still working on positioning it. Okay. How many of you have identified that? If not, you can unmute yourself. You can ask me questions. You have any queries. Nia, can you please explain more about your podcast and from how long you have been doing this? You can unmute yourself, please. I was having a podcast and I started my podcast journey 2 to 3 months back. And basically, I'm a writer, I'm a storyteller. So I already have a book. And, I just started my podcasting journey through a storytelling sort of thing. So I wrote a story, a huge story, and I divided into few parts, like 4 or 5 parts. And with every episode, I recorded some part of that particular story, and I just completed that particular story in that particular podcast. But now it didn't work out so nicely as I was expecting, that people will give me kind of feedback I was looking for. I posted that podcast over Instagram, over WhatsApp, over whatsoever social media I can go for. But then again, people were not so responsive. I don't know what was the reason. I made an account on Anchor app as well and Spotify also. But I don't know what was lacking. I was just not able to configure that. Okay. You are still confused about what exactly happened. Why did it didn't work? I'm confused about what people are expecting out of podcast and what should I go for. I mean, like
Am I in a wrong direction? Should I go for something else, or what exactly? I am confused. Okay, okay. There are a lot of things which you need to know. So, Neha, have you built your email list? Yes, I have. Okay, how many subscribers you have in your email list? Hardly 40, 50. And how many of them are clicking your or listening your podcast? That I haven't checked. Hardly, matlab, you can say that 20, 25. Hardly half of them. Basically, most of the time I am able to see my known people are doing, my known people are listening to my audio stories, to my written stories. They are just responsive to, whosoever are, well aware about me and my work. Okay, but then whosoever are like new to me, they are not even me, they are not even listening me. I don't know, maybe शायद मेरे marketing skills में कोई कमी है, या मेरे किसी presentation में कोई problem है. I don't know, I'm not able to understand. क्योंकि मैंने सुना नहीं है, तो यहाँ पे दो ही चीजें मैटर करती हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन है और एक आपका कंटेंट कितना इंगेजिंग है. तो हम उन दोनों टॉपिक्स पे आने वाले हैं. तो आपको मे बी आप मेरे को बताना चैट में या फिर अनम्यूट करके कि आपको आंसर आपका मिला या नहीं मिला. I would love to know that. All right. Well, let's see. I hope with this podcast, I will be able to understand my problems and my confusions in a better way, I guess. Right. So I think I've covered all of the topics. So let's see. Kamini ma'am, please unmute yourself. Thank you. Yeah. Hi, Ayush. Nice Hi, to ma'am. hear you, and nice Namaste. to get this particular opportunity of attending a podcast. Right. Yes, my basics are not very clear. Okay, that is, how to get into it, account, and I've been, troubling you also many times about it. So, and thank you for all that, information and help that you've given me. My major concern is, yes, first of all, is because I do not know how to use the, Anchor, the softwares that are there. Okay. So, and then probably I would be able to do the marketing or sending it. So I would like to learn everything that is there. That's why I joined that thing. But I know my, niche. So these are two areas which I'm looking out for, which I've written over there. And because this is what is my next dream, which I need to get into. Right. No worries, ma'am. I knew your pain. I already knew your pain, and I actually covered all of the things Yes. where you are stuck right now. Yeah. So Thank you so much for considering that, for newbies who are actually wanting to do something, they have the skills, but then do not know how to use the technology part of it. Thank you for Right. that. Thank you, ma'am. Okay, now you can unmute yourself. Thank you. Okay, so I think almost 95% of people are stuck in understanding how to position themselves in the marketplace. So let's jump into the reason why you should start a podcast. So here are the 10 real reasons that you should consider and start a podcast in 2020. So the first reason here is it is easy to digest. Most of the times when stats say that we listen to a podcast while traveling, working, or while mostly doing our work. Even I do that too. So it's way easier than digesting a 2,000-word blog or even a book or ebook. So sometimes podcasts are best ways to consume or learn skill sets or learn about particular topic. That is one thing. Another thing here is podcasts are easy and inexpensive to start and maintain. So it's pretty easy to start and maintain a podcast. The only thing you need is consistency, and trust me, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए. So podcast is very growing medium of marketing and for building a personal brand. So अभी बहुत सारी चीजें हैं you'll face, but it's really inexpensive to start. Now the third point here is it's easy to push content globally. मैंने भी कुछ दिन पहले देखा था कि मेरा जो कंटेंट है, और मेरे को कुछ और भी लोगों ने बताया कि उनका जो कंटेंट है ग्लोबली लोग सुन रहे हैं. So podcasts are, as I told you, it's easy to push content globally and reach a new audience, and it's a great medium to learn and develop skill sets. And most of the times I've learned, especially sales and networking and negotiation from few podcasts. Also communication skills and few soft skills I've learned from listening podcasting. So the
fifth point here is you'll find it easier to attract and convert your deals and ideal customers, because if you know how to create content and what are the best ways of getting a lead, or getting a lead, or giving a if you are giving a good call to action, then you'll find or you may get good leads in the end, right? It helps you build a personal brand. Also, it helps you connect with industry experts, because we all can see now people are, and even big entrepreneurs are happy to join you on podcast if you just approach them. They don't deny easily, because they know the podcasts are doing well, and it's a great medium to connect with industry experts, and I did that in the past, and I know that. So I'll come to all of them. I'll explain them more better. So it's still less competitive, because if you I don't know stats in India, but not even 5,000 podcasters exist in India, sure. So there is a potential to make money. I'll come to that as well, and build your community and work on your passion. So by building your community, I mean, if let's say if you have community or only about, let's say you are a rider, you ride a bike, a sports bike, and you have a community of people who are similar, doing same, who are in your niche. So let's say if you want to collaborate any company, and if you say that you have a community, you have good engagement, you have good click rate, you have everything, is your stats are, if your stats will be good, you will be able to connect and collaborate with them. If you are still not convinced about why you should start a podcast, let me share some stats here. There are currently 8.5 million active podcasts and over 30 million podcast episodes. More than half of US consumers above the age of 12 listen to podcasts. We have Shivansh here. He's from Australia. He better knows, how many people are listening to podcasts in other countries, right? So, nearly 3 out of every 4 podcast listeners in the USA, they tune in to learn new things, because it's a great medium of learning, new things. And more than half of the listeners are at least somewhat more likely to consider buying a brand after hearing its advertisement on a podcast. These are just some of the stats. Apart from that, podcast advertising revenue are expected to surpass 1 billion by 2021. And the average weekly podcast listener subscribe to an average of 6 shows and listens to 7 shows per week. That's huge. If you are a good if you listen to a podcast, you get something that attracts you more and more. So you get habitual of that. So ladies and gentlemen, how's the Josh? I know few people are still confused about many more things, but how's the Josh? Hey, are you enjoying the podcast, man? I mean, super excited to see how it would end, and I'm super excited to start one podcast because of, as you said, at last, like there are 5,000 only podcaster in entire, like India. That yeah, not even 5,000. You can just search on Spotify, Google Podcast. You'll hardly find 1,000 podcasts. Trust me. That's very, very less market, man. I mean, I guess it's like the golden time to get into this podcasting. So really glad that you presented this opportunity. Looking forward. Yes, in fact, you have been making videos. You should repurpose the content on podcasting. Right, okay, so right. let's move. Sure. Okay, so let me help you set up your account. I'm sure few people have not done the subscription. Guys, how many of you have set up your account on Anchor FM? Ayush, I had put a question. I already have one account, but then can I create another account with another email ID? Yes, ma'am. You can do that. Because it's not giving me an option where I can add account. That is the second account. So where do I get that? First log out from the first account you have created. Then you will be able to find a new register now link. Okay. So you can sign up. Okay. So Ehraz is saying, I have a lot of unique content of my own, but I lack confidence in front of audience in audio or video medium. I think Ehraz, मैं बताता हूँ.
मेरे को भी ना अभी यू कैन सी कि मैं भी थोड़ा बहुत यू नो मेरे को भी कॉन्फिडेंस इशू है, ऑनेस्टली आई एम वेरी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू। तो मैंने इसीलिए पॉडकास्ट स्टार्ट किया था। मेरा रीजन ही यही था कि मैंने पॉडकास्ट इसीलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे हेजिटेशन होता था वीडियो से इनिशियली। लेकिन ऑडियो जब आप करते हो ना, Araz, I'm sure you haven't created any podcast yet, any episode yet. Just unmute yourself and reply me. Have you created any episodes yet? Actually, I did one, but things went pretty crazy. कुछ समझ नहीं आ रहा था ये एंकर क्या होता है, Spotify क्या होता है, and Right. then, this Apple podcast. Then I just stopped like everything and came back to my videos thing. Right. So Araz is saying कि उसने कभी podcast episode create नहीं किया है. Trust me, brother. Go and create a episode after this workshop in the night anytime. ठीक है. And उसके बाद मुझे बताओ कि कैसा लगा. Just audio, nothing else. ठीक है. So guys, I'm here to help you set up your account. Just tell me कि क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है. No, Avinash. Sorry. I have a question. Sure, ma'am. Sure. I have a question कि जैसे मेरा ऑलरेडी पॉडकास्ट बना हुआ है एंड पॉडकास्ट का नाम है लफ्ज़े दास्तां. इट्स लाइक अ स्टोरी. So should I go for another account naming the another name of like podcast? अगर मैं दूसरा स्टार्ट कर रही हूँ तो क्या मुझे उसका दूसरा नाम रखना चाहिए, उसी अकाउंट में स्टार्ट करना चाहिए, और how? मैम आप मेरे को यहाँ पे एक चीज बताइए, जो आप पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हो वो उसी का एक सब टॉपिक है या फिर क्या एग्जैक्टली वो डिफरेंट? लफ्ज़े दास्तां इज द नेम ऑफ अ शो एंड उसी के अंदर एक पूरी बहुत बड़ी सी स्टोरी है. इट्स लाइक अ नॉवल. जैसे नॉवल में हम एक स्टोरी पढ़ते हैं, राइट? उसी तरीके से इसी शो में एक ही स्टोरी है जो हर एपिसोड्स में चल रही है, जस्ट लाइक अ सीरीज. हाँ, तो सीरीज नहीं बना सकते ना, पॉडकास्ट में मत बनाइए, आप सीरीज नहीं बना सकते हैं. उसी अकाउंट में दूसरी सीरीज कर दूं मैं फिर? हाँ, बिल्कुल. आपके पास ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप डिफरेंट सीरीज ऐड कर सकते हो. जब आप पब्लिश करोगे ना, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि ये कौन सी सीरीज है. बट इट वोंट बी वियर्ड कि एक ही अकाउंट में पहले मैंने लफ्ज़े दास्तां का बनाया था और लेट्स सपोज अगर मुझे दूसरा मेंटल हेल्थ पे बनाना है या XYZ कुछ और टॉपिक पे बनाना है, वोंट इट बी सो वियर्ड कि एक ही उस पे दो चीजें? मैम अगर निश अलग है ना, जैसे अगर मैं फुटबॉल पे बनाता था और अगर मैं क्रिकेट पे बनाऊंगा तो है तो इंडस्ट्री सेम, राइट? अगर आप लफ्ज़े दास्तान में अगर आप पोएम्स बताते थे और आप फिक्शन नरेट करते थे तब वो, और अगर उसमें कुछ बी पार्ट अगर मेंटल हेल्थ का या फिर इमोशन है तो आप उसको एक पे कर सकते हो. लेकिन अगर आपको सेपरेटली सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए अगर आपको नया पॉडकास्ट बनाना होगा तो आपको चैलेंज आएगा उसे मतलब थोड़ा सा पुश करने में इनिशियली. बाकी आप सेपरेट अगर कितने टॉपिक को करोगे, ऐसे तो मेंटल हेल्थ के अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं. ये सिर्फ टॉपिक्स हैं जो थोड़े से बड़े होते हैं, बट उसके लिए सेपरेटली पॉडकास्ट बनाना प्रोबेबली नॉट अ गुड आइडिया. ऑलराइट. एंड व्हाट डू यू थिंक कि किसकी रीच ज्यादा है, गाना ऐप और स्पॉटिफाई? बिकॉज एंकर ऐप से तो अपने आप स्पॉटिफाई पे चला जाता है, वी ऑल नो दैट. बट व्हिच इज बेटर प्लेटफॉर्म, स्पॉटिफाई और गाना ऐप? Spotify for podcast. Alright, thank you so much. Yeah. Okay, Ayush, like ma'am has just put the question. So like I also have one account. So in the same account, can I put a different topic now? Like I said about career, about the counseling part of it. I think that's a good question, ma'am. Because आपको मेरे को लगता है ना, आपको query ये doubt होगा कि मुझे नया एपिसोड या नई सीरीज के लिए कहीं और दूसरा पॉडकास्ट बनाना पड़ेगा. So the answer is no here. You don't need to create any another account. ठीक है? Okay. आप एक ही अकाउंट पे डिफरेंट सीरीज लॉन्च कर सकती हैं. ठीक है? जैसे मैं इंटरव्यूज भी करता हूँ, मैं सोलो पॉडकास्ट भी करता हूँ, मैं कॉन्वर्सेशन भी करता हूँ, राइट? जी. सो आप डिफरेंट चीजें कर सकती हैं पॉडकास्ट पे. तो फिर जब वो लिंक आता है उसका, तो लिंक जैसे अभी मेरा बना हुआ कामिनी कुमारी कहानी, so that kind of a link is there. Okay. So now when I create something else, so उसका मतलब कहाँ से I'll create it? I mean I didn't get that. आपको जो अभी लिंक मिलता है वो कहाँ से मिलता है? जब आप शेयर करते हो तभी मिलता है ना? हाँ जी. राइट. सो जब आप वहाँ पे टॉपिक डालोगे, जो भी आप टॉपिक बनाना चाहते हो, तो उस टॉपिक का लिंक आपको मिल जाएगा. इनफैक्ट आप बिटली यूज कर सकते हो अगर आपको लिंक चाहिए. बहुत सारे टूल्स हैं, आप यूज कर सकते हो. बिटली पे आप जाके अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, वहाँ पे लिंक शॉर्ट हो जाता है. बहुत बड़ा लिंक होता है तो वो शॉर्ट हो जाता है. ठीक है? तो वहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं, मेनली कामिनी कुमारी, जो भी आपका पॉडकास्ट है.
ठीक है, वो आप कर सकते हैं. Okay, so let's move. I hope everyone have created their account. Please tell me in the chat section, guys. Okay, so guys, you can create your account. It's very easy. और अगर if you stuck in creating your account, just let me know. हम आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है? So let's distribute now. Like we have created our accounts and we know how to create an account. So let's distribute now. And what is exactly why distribution is important? So most of the time जब मैं podcast मैंने start किया था initially, so मुझे बहुत कम listeners मिले थे. First episode जो मैंने अपना launch किया, या so वहाँ पे उस टाइम क्या हुआ था कि मुझे बहुत कम listeners मेरे शो पे आए थे और बहुत कम लोगों को पता चला था. Just because of मैंने distribute ही नहीं किया, मैंने कहीं डाला ही नहीं. But उसके बाद जो मैंने सेकंड एपिसोड लॉन्च किया, तो वहाँ पे उसके बाद मैंने उसका अलग से क्रिएटिव बनाया कैनवा से, और उसके उसके हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पे मेरी. तो उसके बाद फिर मेरे लिसनर्स बढ़ गए. सो ये डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा होता है कि आपकी अवेयरनेस बढ़ती है. कई बार लोग शेयर भी कर देते हैं आपके फ्रेंड्स वगैरह. सो that's why distribution is important. That's how it is. So now the first step here is to create an email list before you launch your podcast. And why it is important? मैंने बहुत late realize किया कि अगर मेरे पास मतलब I'm still creating my email list, और अगर आपके पास अगर आप शुरू से अगर आप email list बनाओगे अभी, तो आपको benefits क्या होंगे? जो आपको benefits होंगे कि आप जो है एक साथ आपके अगर सब्सक्राइबर होंगे, या फिर आप ईमेल लिस्ट बनाओ, या फिर आप टेलीग्राम पे कोई ग्रुप बनाओ जहाँ पे आप एक कम्युनिटी एक फाउंडेशन क्रिएट कर दो, जहाँ पे आपके लोग या आपके लिसनर्स हो, आपके सुपर लिसनर्स हो, ठीक है? तो वहाँ पे एक वाइब क्रिएट होती है और बहुत सारी चीजें होती हैं कम्युनिटी में. तो हम सबको पता है कितने बेनिफिट्स होता है कम्युनिटी को ज्वाइन करने में. सो ईमेल लिस्ट का ये फायदा है कि आप एक साथ लोगों को शेयर कर सकते हो, और आपकी लिस्ट एक बार बन जाएगी तो बढ़ती जाएगी, और अगर आप नहीं बनाओगे तो फिर और डिले भी हो जाएगा धीरे धीरे. सो रिकॉर्ड 3 to 5 पॉडकास्ट एपिसोड बिफोर यू लॉन्च. इससे क्या होता है कि कई बार ना हम अगर सोलो पॉडकास्ट कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर हम इंटरव्यू पॉडकास्ट कर रहे होते हैं ना, तो टाइम लग जाता है अदर पर्सन का टाइम लेने में. तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आप लॉन्च कर रहे हो ना अभी अपना पॉडकास्ट, तो 3 से 5 पॉडकास्ट आप एपिसोड रिकॉर्ड कर लो, ठीक है? चाहे वो 5 मिनट का हो, चाहे वो 50 मिनट का हो, 3 से 5 रिकॉर्ड कर लो, और आप उसको 4 दिन 3 दिन के गैप लेके, 1 हफ्ते का गैप लेके लॉन्च करो, और अच्छे से सबको डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है? तो इससे आपका जो रहेगा ना वो ब्रांड प्रेजेंस भी रहेगा, और लोग बार बार सुनने भी आएंगे, और इतने में आपको टाइम भी मिल जाएगा अदर रिकॉर्ड करने के लिए. ठीक है, लॉन्च डेट श्योर नम्रता. ईमेल लिस्ट का फायदा क्या होता है कि यार आप अभी जो है ना ईमेल लिस्ट पे क्लिक रेट आपको सब कुछ आप देख सकते हो कि कितने क्लिक्स आए हैं, कितना ओपन रेट आया है. अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा मार्केटिंग का, तो आपको भी बहुत कंपनीज जो है स्विगी के जो भी आप यूज करते हो उनके ईमेल्स आते होंगे, कुछ कंपनीज के आते होंगे, फेसबुक के आते होंगे, कुछ भी हम यूज करते हैं, राइट? सो वो क्यों करते हैं? बिकॉज they have something or some place or a medium जहाँ पे वो एक बार अपनी लिस्ट को ईमेल सेंड करें और सबको पहुंच जाए और सब लोग सुन लें. उनको बार बार डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत नहीं आएगी. और वही चीज अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम करते जाओगे हर पॉडकास्ट के लिए अलग से, दैट इज ओके. बट अगर आप हर बार करोगे ना, तो हो सकता है हर बार लोग नहीं सुने. Yes, Janvi, I'll suggest you all the topics you can make podcast. एक बार बात करेंगे उस बारे में. Yes, ma'am. How can get the email list? मैम आपको जो है ईमेल लिस्ट कैसे मिलेगी? तो आप एक इनिशियली बताऊं, बहुत बेसिक बताऊं तो गूगल डॉक है, गूगल शीट है, वो आप गूगल शीट पे ना 3 कॉलम बना लो, नेम, ईमेल और नंबर, मतलब कोई भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? नेम और ईमेल का सेक्शन बना लो, और जो है आपको मैं बताऊंगा कि आप ईमेल कैसे कलेक्ट कर सकते हो, कैसे सब्सक्राइब कर सकते हो. तो उस पर हम आएंगे अभी थोड़ी देर में. तो मैं अब आपको माइंडसेट ऑफ ए सक्सेसफुल पॉडकास्टर. सो कैसा माइंडसेट होना चाहिए आपका, कैसे आप खुद को प्रिपेयर करें बिफोर यू क्रिएट अ पॉडकास्ट. Ayush, I want to ask one thing from you. Brother, don't you think email is noisy channel? वहाँ पे काफी ज्यादा रश होता है, तो लोग बहुत कम चेक करते हैं ईमेल लिस्ट को. Don't you think कि हमें कोई और
ऐसा चैनल सोचना चाहिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ईमेल लिस्ट की जगह हमें सोशल मीडिया प्रेफर करना चाहिए ज्यादा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? हाँ, मैं बताता हूँ इसका रीजन। यहाँ पे मैंने ईमेल क्यों लिया है ना, क्योंकि ईमेल इज मोर प्रोफेशनल देन अ सोशल मीडिया, राइट प्लेटफॉर्म। या फिर आप अगर एक लिंक्डइन पे अपना ग्रुप बनाते हो तो वहां पे आप प्रोफेशनल हो सकते हो, या फिर अगर आपकी कम्युनिटी है गेमिंग की, या फिर जो मिलेनियल्स होते हैं तो वो अपना सोशल मीडिया पे बना सकते हैं। बट इफ यू आर प्रोफेशनल एंड इफ यू लाइक, अगर आप इसको लॉन्ग रन में देखोगे ना तो ईमेल इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने किया है, और अगर आप कल को कुछ प्रोडक्ट भी वहाँ पे प्रमोट करते हो ना, अफिलिएट एज अ अफिलिएट खुद का प्रोडक्ट प्रमोट करते हो, तो आपको पता रहेगा कि यार कितने लोग क्लिक करेंगे। इसके बहुत लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप एक बार ईमेल लिस्ट बनाओगे, वहाँ पे आप अपना सिर्फ पॉडकास्ट भेजोगे। इट्स अबाउट कि आप एक रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, एक अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। सोशल मीडिया पे कम्युनिटी बनाना वो भी जरूरी है, फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप्स बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन ईमेल लिस्ट के अलग फायदे, ठीक है। श्योर, या थैंक यू फॉर वंडरफुल आंसर। सो मैं बात कर रहा था यहाँ पे माइंडसेट की। माइंडसेट कैसा होना चाहिए? कई बार मैं मोस्टली माइंडसेट की बात करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि जब हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने बैठते हैं ना, हम कई बार होपलेस हो जाते हैं कि हमने प्रिपेयर नहीं किया या फिर हमने नोट्स नहीं बनाए। माइंडसेट क्यों जरूरी है, सबसे पहले समझना ये है। अगर आपका माइंडसेट इफ यू आर हैप्पी बिफोर डूइंग अ पॉडकास्ट, वैसे पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ, मैं और कोई ज्ञान नहीं दे रहा, मैं सिर्फ पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ। पॉडकास्ट करने से पहले आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए और सक्सेसफुल उसको करने के लिए कैसा होना चाहिए। सो पॉडकास्ट पे आपको लगता है ना कि यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन और योर गेस्ट, राइट, समटाइम्स। सो लेकिन ऐसा नहीं होता। जो लोग सुन रहे होते हैं ना, उनके पर्सपेक्टिव से आपको कई बार खुद सुन के समझना चाहिए कि यार जब मैं बोल रहा हूँ, जब मैं समझा रहा हूँ कोई चीज, तो कैसा लगता है, दूसरे लोग कैसा फील करते हैं। अगर मैं कोई स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ समझा रहा हूँ या स्टोरी बता रहा हूँ, नरेट कर रहा हूँ, तो वो क्या जो सीक्वेंस है, जो फॉर्मेट है मेरा सही है या नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जर्व करो खुद को टाइम टू टाइम। और माइंडसेट जो है, बी इन अ गुड मूड बिफोर स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट। सो दैट्स जस्ट वन सजेशन। सो बी इन अ गुड मूड, बेस्ट मूड बिफोर स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट, ठीक है। आपको कुछ आइडिया नहीं है कि वो पॉडकास्ट कितने लोग कल को सुनेंगे। सिर्फ 1 महीने 2 महीने नहीं, 1 साल बाद भी लोग सुन सकते हैं, ठीक है। सो ये एक बेनिफिट है माइंडसेट का। दूसरा बेनिफिट ये है कि क्रूशियल हियर इज अप्रोचिंग योर पॉडकास्ट विद द माइंडसेट ऑफ बीइंग अ चैंपियन टू योर ऑडियंस। इसका मतलब ये है कि वही जो अभी मैंने ऑडियंस की बात करी, ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखें ना, सो यू हैव टू बी मोर पॉजिटिव अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। सो वो जो वाइब है ना, वो ट्रांसफर होती है। अगर मैं खुश हूँ और मैं एनर्जेटिक हूँ ना, तो आप में भी एनर्जी आएगी, आप में भी जोश आएगा। अगर मैं बहुत ढीले होकर बात करूँगा तो आप भी बोर हो जाओगे, ठीक है। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, बट मैंने थोड़ा सा सोचा कि इसको कवर कर दूं। बाकी माइंडसेट का बहुत पावरफुल होना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है ना, सिर्फ माइंडसेट के ऊपर है। योर वाइब शुड रिफ्लेक्ट योर ब्रांड पर्सोना। सो यहाँ पे ये मतलब है कि यार if you like, let's just say कि मैं मिलेनियल्स के लिए पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट मिलेनियल्स एंड अपॉर्चुनिटीज। एंड अगर मैं वहाँ पे पॉडकास्ट करते टाइम मैं खुद को शो करूंगा कि यार आई एम अ वेरी ओल्ड पर्सन, और मैं ऐसा मतलब अपने ब्रांड को कैरी नहीं करूंगा, अपने ब्रांड पर्सोना को, उस मैसेज को बेसिकली जो मैं अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा हूँ मिलेनियल्स के लिए, अगर मैं उस मैसेज को हर टाइम अपने माइंड में कैरी नहीं करूंगा, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ समझने में, रिलेशनशिप में थोड़ा सा इशू आएगा आपके लिसनर्स के साथ, ठीक है। बहुत डीप बात है, बट आपको ये सारी चीजें कंसिडर करनी चाहिए जब भी आप कोई पॉडकास्ट कर रहे हो, जब भी कुछ आप एपिसोड कर रहे हो। आपका जो ब्रांड पर्सोना है, जो आपका ब्रांड मैसेज है, सिंपली बताऊंगा, वो दिखना चाहिए, ठीक है। और डोंट थिंक टू मच अबाउट द फ्लो, सेट लो एक्सपेक्टेशन, ठीक है। ज्यादा एक्सपेक्टेशन सेट मत करिए, जस्ट गो ऑन रॉक, ठीक है। सो करते जाइए, आगे बढ़ते हैं। सो आइडेंटिफाई योर ऑडियंस, कि आपकी जनता कौन है। लेट्स अंडरस्टैंड कि आपकी जनता कौन है। डिफाइन योर निश। सो गाइस प्लीज टेल मी योर निश इन द चैट सेक्शन, आई वांट टू नो ऑल ऑफ यू। वैसे तो काफी लोगों ने बताया था। गाइस इफ यू हैवंट आइडेंटिफाइड योर निश, प्लीज टेल मी कि आपने नहीं किया है आइडेंटिफाई। मोटिवेट पीपल थ्रू पॉडकास्ट, ओके।
inner engineering. Super cool. I think these are very interesting topics in our engineering. I would like to subscribe to one. Right, and it's inner engineering. It's very deep. Not identifying. Yeah. I've done the outside engineering, but I'm really interested in the inner engineering now. Cool. So यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि अपनी डिश आइडेंटिफाई और डिफाइन करना क्यों जरूरी है। यार अगर आप अपनी डिश आइडेंटिफाई नहीं करोगे ना तो आप भटक जाओगे। सिंपली बताऊँ तो यू नो दूसरा यहाँ पे पॉइंट मैंने लिखा है व्हेन यू ट्राई टू टॉक टू एवरीवन यू एंड अप टॉकिंग टू नो वन। सो वही चीज है, आप भटक जाओगे इफ यू आर ट्राइंग टू कवर एवरी सिंगल पर्सन you know while creating a podcast, while doing an episode. So अपनी डिश आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ जिन लोगों ने अभी तक अपनी डिश आइडेंटिफाई नहीं करी। और शुरू में कुछ लोगों ने पूछा था कि मुझे पॉडकास्ट क्यों करना चाहिए। तो पॉडकास्ट क्यों करने चाहिए, बहुत सारे रीजन दे दिए और भी मैं रीजन दे दूंगा। लेकिन निश आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है। जैसे यू आर ए स्टूडेंट, हम हमारे काफी स्टूडेंट्स हैं। शालिनी, आई हैव स्पोक टू यू and few other people we have. So students, anyone please unmute yourself. Let's chat and I'll help you with finding your niche. Hi, I'm also a student. My name is Hi. Lakshmi. Hi Lakshmi, how are you? Yeah, I'm doing good. I'm a master student. You're a master student, okay. Yeah. Okay. Hi, Hi Dhyanvi, how are you? I'm fine. Okay. Recently, I just passed out 12th. So You passed well, okay. So Dhyanvi, right? So Dhyanvi, what is your passion and what do you want to pursue? I want to pursue English honors. English honors. Okay. So you must be reading many novels and literatures, right? Not such, but yeah. Okay. You can share your experience or learning. Okay, that's one thing. So, like, if you already have listeners, even just try to find out who they are, and you can, if you find the things they have in common, that might tell you a bit about how to define your audience. क्या होता है कि मेरे जो audience है ना, मैंने कुछ दिन पहले identify किया था। I get 5 to 6 message on Instagram on a weekly basis. So काफी ऑडियंस होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, तो वो पॉडकास्ट सुनने के बाद मेरे से बात करते हैं कि यार I've listened to your podcast and everything. So मेरा जो इंटरेस्ट है ना यार, आयुष तूने लास्ट टाइम में ये टॉपिक कवर किया था और मे बी दैट वाज मार्केटिंग फनल्स, बट ही वांट्स टू नो मोर अबाउट चैटबॉट कि चैटबॉट क्या होता है। बॉस मैं थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ, मेरे को चैटबॉट बता दे, ठीक है। सो मुझे पता चल जाएगा यार ही इज अ डिजिटल मार्केटर जस्ट लाइक मी। और इफ समवन सेज, जैसे मैं सेल्फ हेल्प के ऊपर करता हूँ और कोई रिचुअल्स के ऊपर करता हूँ, तो बोलेगा कि यार कोई भी बोल सकता है कि यार कोई लिसनर बोलता है कि आयुष मैंने आपका जो पॉडकास्ट सुना सेल्फ लव के बारे में, रिचुअल्स के बारे में, कैन यू प्लीज कवर समथिंग मोर अबाउट हाउ टू सेट अ माइंडसेट व्हेन बिफोर डूइंग अ बिजनेस। सो ये सारी जब आपके लिसनर्स के साथ, तो आपको बहुत क्लियरली पता चल जाता है इजीली कि आपको क्या कंटेंट बनाना है और आपकी ऑडियंस कौन है, ठीक है। Finding your audience is the key part of making your podcast a start, on your marketing, on pitching your podcast to sponsors. अब काफी लोग को शायद नहीं पता होगा पॉडकास्ट के लिए आप स्पॉन्सरशिप भी ले सकते हैं। काफी लोग स्पॉन्सर्स करते हैं और बहुत सारी चीजें। मैं अगर थोड़ा सा मार्केटिंग के बारे में बताऊँ ना, तो पॉडकास्ट का एक ये भी रीजन हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप अभी पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं और अगर आपका पॉडकास्ट ग्रो हो गया ना, तो दिस विल बिकम अ मनी मेकिंग थिंग फॉर यू इन फ्यूचर, ठीक है। एंड यू कैन एक्चुअली अर्न फ्रॉम जस्ट थ्रू ऑडियो, योर ऑडियो। सो अभी मैं कवर करूंगा वो भी। बाकी if you have anyone have any questions, you can type in chat. Let me know. All clear so far? I think a lot of people will need more counseling in identifying the topics. Mhm. That is something that we can do, like we can plan out for this week, and we can have a one-on-one session, because these type of discussions are more one-on-one, where they would need more support in identifying what them right. So this counseling session will keep for weekdays, Yeah. based on your availability, of course. And, Yeah.
I think that is something you have already included, right? Yeah, let's just keep Yes, going. yes. I'm happy to help everyone here who have joined me. So, if anybody have Okay. haven't identified their niche or what exactly they want to do in podcasting, like create a podcast, so I'll help you personally as well. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है? Just bear with me for another few hours, I think. Okay, so let's create some content. How many of you are excited to create content? Or how many of you are ready to create content? Great energy, guys. Great energy. So, yeah. But before creating content, let's understand how many types of podcasts exist. क्योंकि ये जानना भी बहुत जरूरी है, ठीक है? तो मेनली जो पॉडकास्ट होते हैं ना, 7 टाइप्स होते हैं. वैसे तो ज्यादा होते हैं, बट यहाँ पे मैंने मेनली 7 टाइप्स ऑफ पॉडकास्ट जो है बताया है. द फर्स्ट वन इज द इंटरव्यू पॉडकास्ट, जहाँ पे आप सीरियस कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, you know, let's say politics or about anything related to psychology, let's say. So वो जो इंटरव्यू होगा ना, वहाँ पे आप बहुत सीरियस डिस्कशन कर रहे हो, like you are into B2B, you are doing a business conversation with someone. So जो इंटरव्यू वाला पॉडकास्ट होता है ना, वो you know बहुत सिंपल, बहुत क्लियर होना चाहिए और बहुत फॉर्मल हो तो सही रहता है, ठीक है? सोलो पॉडकास्ट क्या होता है? बहुत सारे सोलो पॉडकास्टर्स हैं इंडिया में जो डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है अश्विनी, क्लियर टैकल या. सो सोलो पॉडकास्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, इफ यू हैव इफ यू आर filled inside your mind कि आपके पास बहुत सारा कंटेंट है बाहर निकालने के, just like Ranveer and few other people have lot of content. So you should go for solo podcast, I would say. पैनल शो में क्या होता है? पैनल शो में like you're discussing something, you have few people with you. It's not just like a podcast, it's a serious conversation with few people about a serious topic, ठीक है? So पैनल शो हो सकता है. कॉन्वर्सेशनल होता है, जैसे मैं करता हूँ, जैसे मैं किसी भी गेस्ट को बुलाता हूँ अपने शो पे, तो मैं इंटरव्यू पॉडकास्ट से नहीं बोलूंगा, क्योंकि वहाँ पे कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, मैं बहुत कैजुअल कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो कॉन्वर्सेशनल हो गया. या फिर को होस्टेड शो, जैसा मैं एक और अभी पॉडकास्ट करने वाला हूँ, तो होस्ट विल बी समवन एल्स, गेस्ट विल बी समवन एल्स, एंड आई विल बी को होस्टिंग दैट शो, ठीक है? नॉन फिक्शन स्टोरी टेलिंग, आई होप एवरीवन इज क्लियर विद नॉन फिक्शन स्टोरी टेलिंग पॉडकास्ट. बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, कुछ पॉडकास्ट बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हैं, यू नो बहुत, यू नो अगर हम पॉडकास्ट की बात करें ना, तो बहुत क्लियर होते हैं, यू नो बैक स्टेज होते हैं. कुछ लोग बोलते हैं कि यार लोग आगे सच नहीं बताते, लेकिन अपने पॉडकास्ट पे ना वो रियलिटी शेयर करते हैं, ठीक है? तो कुछ अभी मैं पॉडकास्ट के नेम आपको बताता हूँ, जो मैं कुछ सुन रहा था कल. ऑफ स्क्रिप्ट विद सलील, ये यहाँ पे सिर्फ रियलिटी बताता है. एक रेड एफएम की आरजे है, उसका पॉडकास्ट है संस्कारी सेक्स, वो भी काफी इंफॉर्मेटिव है. उसके बाद द रणवीर अलाहाबादिया शो, ड्रीम विद योर आईज ओपन बाय रॉनी स्क्रूवाला. तो ये सारे जो पॉडकास्ट हैं, यू नो कुछ इसमें से नॉन फिक्शनल हैं और स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ हैं, जैसे मैंने अभी लास्ट में बताया ड्रीम विद योर आईज ओपन बाय रॉनी स्क्रूवाला. So it's a non-fictional storytelling about, you know, business and some serious stuff. So these are some topics, some kind of podcast that exist. No worries, no worries. So repurposed content क्या होता है, ये थोड़ा सा जरूरी है आपको समझना. आपने कई बार देखा होगा गैरी वी, few other speakers, बहुत सारे speakers. तो repurposed content क्या होता है, हम ये समझते हैं. मैं एक अभी जैसे मैं वीडियो बना, ठीक है, और मैं साथ के साथ इसका ऑडियो वर्जन अपने पॉडकास्ट पे डाल सकता हूँ, तो उसका रिपर्पस हो गया. इसके अलावा कुछ दिन पहले मैंने जैसे पीछे शिवांश के साथ पॉडकास्ट किया था काफी टाइम हो गया, और उसको जो है उस पॉडकास्ट को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में यू नो कुछ चीजों के बारे में बात करी, जैसे 4 चीजों के बारे में बात करी. तो उसमें से मैंने 2 टॉपिक को निकाला, एडिट किया, कट किया और इंस्टाग्राम पे IGTV में डाल दिया. दैट इज रिपर्पस कंटेंट. सो ये करना बहुत जरूरी है. अगर आप ये करते हो ना, और आजकल तो रील्स बहुत पॉपुलर हो गए इंस्टाग्राम में, अगर आप छोटे छोटे पार्ट में अगर आप करते हो ना पॉडकास्ट या फिर रिपर्पस्ड जैसे से, तो उससे बहुत अच्छी मतलब आपको ग्रोथ मिलती है पॉडकास्ट में, आपके पॉडकास्ट शो को. आर बी क्लियर गाइस?
अभी बहुत बहुत अमेजिंग कंटेंट आने वाला है, अभी तो कुछ नहीं है, ये तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई लव कैजुअल कॉन्वर्सेशन, क्योंकि अगर आप फॉर्मल कॉन्वर्सेशन करोगे, अगर आप वेबिनार करोगे ना, तो वहाँ पे आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे ऑडियंस से। नाउ आई एम टोटली कनेक्टेड विद ऑल ऑफ यू गाइस। जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस। आगे बढ़ते हैं। कंटेंट किस तरह का बने, क्या बने, ठीक है। सो टॉक अबाउट योर इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं शेयर करता हूँ। मेरा इंटरेस्ट ना साइकोलॉजी है, बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप है, डिजिटल मार्केटिंग है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है, ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद कुछ और भी इंटरेस्ट है, जैसे रीडिंग, लिसनिंग, म्यूजिक, पॉडकास्ट। सो टॉक अबाउट योर इंटरेस्ट। एक मेरा फ्रेंड है रोनित, वो अपनी पूरी जर्नी को, मतलब जो काम कर रहा है, इज डूइंग ग्रेट, तो अपनी पूरी चीजों को जो भी करता है ना, वो वीकली डॉक्यूमेंट करता है और उसको अपलोड करता है। शायद कुछ लोगों ने उसका पॉडकास्ट जरूर सुना होगा, नहीं सुना तो आप सुन लीजिए। तो द वे ही इज डूइंग एंड फॉलोइंग हिज एंड शोइंग हिज इंटरेस्ट बेसिकली इज अमेजिंग एंड ब्रिलियंट। फोकस ऑन योर टारगेट ऑडियंस, इट्स नॉट ओनली अबाउट यू। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब मैं यहाँ पे सबको नहीं बोलूंगा एवरीवन इज अ मार्केटर है और सबको सारी चीजें सेल्स के और मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से देखनी चाहिए, लेकिन आप कंटेंट बना रहे हो एंड यू आप दिल से चाहते हो कि वो जो कंटेंट है ना वो लोगों तक पहुंचे, राइट? वो जो कंटेंट है आप दिल से चाहते हो कि लोगों तक पहुंचे, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। सो फोकस ऑन योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है। या लर्न स्टोरी टेलिंग। बहुत सारे टेड टॉक्स हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप स्टोरी टेलिंग सीख सकते हो, और ये एक आर्ट ऐसा है ना जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट है। इवन मैं भी अभी सीख रहा हूँ और मैं एंटरप्रेन्योर को फॉलो करता हूँ, ठीक है, जिनका नाम अंकुर वारिकू है। मैं उनको क्यों फॉलो करता हूँ, क्योंकि ना वो एक एंटरप्रेन्योर है, लेकिन वो जब भी वीडियो बनाते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे जो भी कंटेंट बनाते हैं, वो हमेशा एक स्टोरी टेलिंग वे में बताते हैं और समझाते हैं, राइट? और बहुत अपीलिंग होता है, वो कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से होती है स्टोरी टेलिंग। दैट इज व्हाई आई वांटेड टू ऐड कि आपको स्टोरी टेलिंग सीखनी चाहिए, ठीक है। चाहे आप नहीं भी करो, आपका पॉडकास्ट डिफरेंट जोना में है, कोई भी फिर भी आप सीखो स्टोरी टेलिंग, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्व प्रॉब्लम्स, हेल्प योर ऑडियंस टेक नेक्स्ट स्टेप। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूँ और फिर मैं आगे लेके चल रहा हूँ, वी आर गोइंग टुगेदर, राइट? इसी तरह एंड वी आर एट द सेम टाइम वी आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी ऑडियंस को ना एट द एंड एक कॉल टू एक्शन नहीं दोगे, कुछ एक्शन करने को नहीं दोगे, एक्शनेबल स्टेप्स नहीं होंगे, तो वो भटक जाएगी, ठीक है। और कोई भी नहीं चाहता कि उसका ऑडियंस भटक जाए और वो कहीं और चला जाए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑडियंस दोबारा आए आपके पास, तो सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड हेल्प योर ऑडियंस टेक नेक्स्ट स्टेप्स, ठीक है। आस्क फॉर रिकमेंडेशंस। यार मैं बताता हूँ ये क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एक तो एंगेजमेंट बढ़ती है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइड, लेकिन रिकमेंडेशन से और रिव्यू से और इन सारी चीजों से पता क्या चलता है ना कि आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है। और शायद कुछ लोग घबरा जाते हैं जब उनको ऑनेस्ट रिव्यूज मिलते हैं, लेकिन आदत डाल लो एंड रिकमेंडेशंस लेते रहो एंड उससे आप ज्यादा जल्दी ग्रो कर पाओगे और आपका टाइम बचेगा। रिसर्च मैं बताता हूँ कैसे। अभी कुछ दिन पहले ना मैंने कुछ शेयर किया था कि ना आनंद महिंद्रा जो महिंद्रा ग्रुप के फाउंडर हैं, उन्होंने अपने मोर देन 100 करोड़ रुपए बचाए सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के, जस्ट बाय आस्किंग फॉर रिकमेंडेशन ऑन ट्विटर। आप देखोगे ना कभी भी उनके ट्विटर पे आनंद महिंद्रा जी के, वो बहुत एंगेज करते हैं, बहुत लोगों से पूछते हैं, बहुत, क्योंकि यार रिसर्च में सबको पता है बहुत पैसे लगते हैं और रिसर्च आप मार्केट में जाके करते हो, उनकी ऑलरेडी फॉलोइंग है जहाँ पे वो पूछ सकते हैं लोगों से कुछ, ठीक है। तो दैट्स अ वेरी इजी वे टू सेव योर मनी एंड आस्क फॉर रिकमेंडेशंस। I think it's a great way of running as well. Invite unique guests and experts, ठीक है। अगर आपका पॉडकास्ट एक इंटरव्यू या फिर एक कॉन्वर्सेशनल पॉडकास्ट है, तो इनवाइट यूनिक गेस्ट, थोड़ा सा रिसर्च करें उनके बारे में, ठीक है। बिना ऐसे आप कई बार ना यार हम लोग क्या करते हैं ना, जब हम
पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं ना, मैंने भी किया था शुरू में, इसलिए बता रहा हूँ, तो अपना लोगों को भेजने लग जाते हैं, मतलब इनवाइट सबको भेज देते हैं अपने फ्रेंड लिस्ट में, और अगर आपकी लिस्ट में नहीं भी है आप कई बार भेज देते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा रिसर्च करिए, थोड़ा सा समझिए कि आपके जो गेस्ट हैं और एक्सपर्ट जिनको आप बुला रहे हो वो यूनिक, जिस भी चीज को लेकर आप बोलना चाहते हो। लिसनिंग इज अ वेरी पावरफुल टूल इन आवर लाइफ, राइट। सो यहाँ पे मैंने क्यों बोला है लिसनिंग केयरफुली टू योर गेस्ट, क्योंकि अगर आप अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी हो, बहुत सिंपल हो, बहुत क्लियर हो, तो आपको आपके गेस्ट को सुनना बहुत जरूरी है। टेल योर लिसनर्स देयर टू लर्न मोर। यहाँ पे अगेन मैं कॉल टू एक्शन का फॉर्मूला बता रहा हूँ कि अपने लिसनर्स को बताइए कि आज मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करी, मैं सारी चीजें कवर नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर मैं पॉडकास्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने कुछ चीजें नहीं कवर करी है जो कि शायद बहुत एडवांस है। जैसे मैंने कुछ पेड टूल्स के बारे में बात की, क्या क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पेड टूल्स का इनिशियल यूज करना चाहिए, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो एडवांस है, लेकिन एट द एंड मैं उसके लिए बताऊंगा कि आपको किस वेबसाइट पे जाके रिसर्च करनी चाहिए, क्या आपको करना चाहिए। तो एट द एंड एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए, ठीक है। विजुअल इम्पैक्ट क्रिएटिव्स, यहाँ पे मेरा ये मतलब है कि यार अगर आपका जो कंटेंट है उसको अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से करना है तो उसके लिए विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कई बार लोगों ने, अगर आप आयुष टॉक्स देखोगे ना, कई बार कुछ पॉडकास्ट ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ स्पॉटिफाई पे होते हैं, लेकिन अगर आप गूगल पे देखोगे ना तो उनकी एक तो रैंकिंग कम होती है, और जब आप इमेजेस में जाते हो ना तो उनके इमेजेस बहुत कम मिलते हैं। आई डोंट नो व्हाई, विजुअल्स बेसिकली कम होते हैं। तो यार मैं तो कहूंगा हर एपिसोड के लिए डिफरेंट कैनवा पे बहुत इजीली मिल जाता है स्टार्ट करने के लिए। इनिशियली विजुअल क्रिएटिव्स बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो that was basic but very important, that is why I just added that. आगे बढ़ते हैं। How to win the podcast game, guys, मुझे बताओ what are your thoughts about winning the podcast game and why do you want to win, and like for you what is winning? So my question regarding the creative was कि जैसे अगर हम किसी को गेस्ट स्पीकर की तरह बुला रहे हैं, या सो मतलब मैंने ऐसे काफी लोगों को देखा है, दे आर लाइक दे फॉलो सर्टेन प्रोसीजर और सर्टेन फॉर्मेट ऑफ वन क्रिएटिव फॉर इनवाइटिंग एवरी गेस्ट। अगर हम वो उसको इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं या फेसबुक पे डाल रहे हैं, वो एक ही फॉर्म का क्रिएटिव यूज करते हैं। कैन वी यूज डिफरेंट फॉर्मेट्स, और या फिर सभी स्पीकर्स के लिए सेम फॉर्मेट यूज करना है? लाइक डिपेंड्स ऑन द व्हाट सॉर्ट ऑफ स्पीकर वी आर इनवाइटिंग, इज इट लाइक दैट? नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं बताता हूँ। मतलब आपके ऊपर है यार। अगर आप YouTube पे थंबनेल डाल रहे हो ना तो आप डिफरेंट डाल सकते हो, ठीक है। अगर आप YouTube पे, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे डाल रहे हो। अगर आप Instagram की बात कर रहे हो ना तो अगर आपका सेम होता है ना, थोड़ा बहुत क्रिएटिव, मतलब बैकग्राउंड सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, तो अच्छा लगता है मेरे ख्याल से। और मैंने कई बार देखा है काफी लोग करते हैं ना, सेम क्रिएटिव यूज करते हैं और बहुत अच्छे से सजा अपने Instagram को सजा के एकदम बनाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन अगर आप वही YouTube पे थंबनेल के लिए बनाओगे ना तो probably you can change the structure, I think. अगर आप योर स्टोरी का देखोगे ना तो उनका कई बार सेम होता है, मतलब उनका शुरू से एक पैटर्न है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। कई बार पैटर्न्स जो आप पैटर्न यूज कर रहे हो ना, कई बार लोगों को पसंद नहीं आता, इस वजह से लोग ओपन नहीं करते। तो आपको कई बार चेंज ये करते रहना चाहिए अगर आपको लगता है कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा। ओके, so another question was that as I have one of the guest speakers in my live session today at 5 p.m. so उनके लिए मैंने creative design किया and then I showed it to him also कि आपको कैसा लग रहा है ये वाला। So his reviews were good, but at the same time, is it important to show the creatives to the guest speakers, or should I be simply putting it on my profile? Simply put it on the profile. Okay. Yeah, nothing fancy. Yeah. उनका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, वो बस टाइम पे आ जाए और वो डिलीवरी कर दें जो भी जिस भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ चीजें मैटर नहीं करनी चाहिए। Fine. Yeah. Because these are the small things I think people do notice, that their pictures, some are like really into these things कि उनका फोटोग्राफ अच्छा होना चाहिए, it should be more professional, and और हमारे अकॉर्डिंग वो सही लगेगा लेकिन उनके अकॉर्डिंग that is not appropriate enough. So
वो चीज थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट आई थिंक मैं बताता हूँ यहाँ वही पे क्या लगा है कि ना, मुझे पूछ लेना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं यहाँ पे पॉइंट कहना है, आपका पॉइंट पूछने का सिर्फ फोटोग्राफ है ना कि स्ट्रक्चर, उनको डिजाइन से मतलब कि उनकी फोटो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ। यहाँ पे बात ये होती है, ठीक है। सो अभी जैसे मैंने पीछे शिवांश के साथ किया था, तो मैंने शिवांश से फोटो ले ली थी कि भाई मुझे अपनी फोटो भेज दो, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि भाई मैं कौन सी फोटो यूज करूँ, तो उन्होंने अपनी भेज दी। यू नो, तो आपको ये कंसिडर करना चाहिए, उनसे फोटो मांगनी चाहिए अगर गूगल पे अच्छी फोटो अवेलेबल नहीं है। ओके, श्योर, ठीक, थैंक यू। Okay, so let me help you win the podcast game here. यहाँ पे हम पीछे बात कर रहे थे ईमेल मार्केटिंग की, ईमेल्स की, कैसे क्यों आपको अपनी लिस्ट बनानी चाहिए, ठीक है। लॉन्च क्या होता है, प्री लॉन्च क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं, ठीक है। अभी मैंने ना PR टेल्स करके जो कोर्स कर रहा हूँ मैं पॉडकास्ट, दिस इज बेसिकली इंडियाज फर्स्ट पब्लिक रिलेशंस पॉडकास्ट, राइट। यहाँ पे मैं भी आपको क्यों बता रहा हूँ, इट्स अ पार्ट ऑफ प्री लॉन्च, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ प्री लॉन्च। मैंने भी लॉन्च नहीं किया है, I'm going to launch this, ठीक है। फिर मैं अगर मेरे से अगर इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल या फिर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो यू विल गेट इन टच विद मी, यू विल से कि आयुष कब लॉन्च करो, यू आस्क मी क्या लॉन्च कब कर रहे हो। तो प्री लॉन्च आप कैसे कर सकते हैं ना, क्रिएट अ हाइप, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को मतलब इंगेज करो कि आई एम कमिंग विद समथिंग स्पेशल, अ पॉडकास्ट, और सेंड मी क्वेश्चन, सेंड मी क्वेरीज, क्या कवर करूं क्या ना करूं, सेंड मी टॉपिक्स। तो प्री लॉन्च के लिए ना एक एंगेजमेंट बढ़ाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर आपका ग्रुप है ना, फेसबुक ग्रुप स्पेशली, अगर आपका पहले से एक फेसबुक ग्रुप है जहाँ पे आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली ग्रुप है, यू नो, तो वहाँ पे आप प्री लॉन्चिंग के टाइम ना उनसे रिकमेंडेशंस ले सकते हो कि आप कोई कुछ गलत ना कर दो, कोई गलती ना कर दो, ठीक है। लॉन्च के टाइम पे क्या ध्यान रखना है कि आप लॉन्च के टाइम ना, अगर जैसे अभी हम लोग पॉडकास्ट करें, यहाँ पे आए लाइक 20-40 पीपल विद मी, तो अभी जो लॉन्च है ये बेसिकली मैं वर्कशॉप जो लॉन्च कर रहा हूँ, तो हैव पीपल विद मी, सो मेक श्योर यू हैव पीपल विद मी बिकॉज ऑफ प्री लॉन्च। अगर आप प्री लॉन्च पे ध्यान नहीं दोगे तो यू वोंट बी हैविंग पीपल विद यू एट द टाइम ऑफ लॉन्च। हम क्यों बुलाते हैं गेस्ट को सेरेमनीज में और इवेंट्स में, क्योंकि इवेंट से पहले बुलाते हैं ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्री लॉन्च, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्री लॉन्च कि हम वो आए टाइम पे। हम एक दिन पहले बताएंगे तो नहीं है, उसी तरह नहीं आएंगे, राइट। उसी तरह अगर हम एकदम से पॉडकास्ट लॉन्च कर देंगे ना, तो लोग सोचेंगे कि ठीक है, मतलब सुन लेंगे बात, बट अगर आप थोड़ा सा उनको एंगेज करोगे ना पहले से कि यार मैं पॉडकास्ट बना रहा हूँ, मैं पॉडकास्ट बना रहा हूँ, आपको सुनना है, तो लॉन्च के टाइम पे एंगेज बढ़ जाएगा, ठीक है। लाइफ आफ्टर लॉन्च, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, लाइफ आफ्टर लॉन्च, लोग ना एक्साइट कम हो जाते हैं जैसे जैसे पॉडकास्ट आपका चलता रहता है, उनको नॉर्मल लगता है कि यार दिस इज अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ व्हाट ही इज डूइंग, ठीक है। ये नॉर्मल हो चुका है पॉडकास्ट। अब मतलब मैं भी नॉर्मल हो जाता हूँ। पहले मैं बहुत खुश था कि ये पॉडकास्ट लॉन्च कर रहा है, इसने लॉन्च कर दिया है, अब तो ये डेली आ रहा है, अब ये पॉडकास्ट लॉन्च कर रहा है। तो वहाँ पे आपको ना मतलब यू कीप ऑन, जिन लोगों ने जो आपकी कम्युनिटी बनाई है, जो आपके साथ लोग जुड़े हुए थे, जो साथ के साथ प्रोसेस में जुड़ते जा रहे हैं, उनके साथ कनेक्टेड रहिए लॉन्च के टाइम, मतलब लाइक आफ्टर लॉन्च, ठीक है। तो आपको इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपके पास हमेशा कुछ लोग, मान लो अगर आपके पास 100 लोगों का लिस्ट है या फिर 100 लोग हैं आपके साथ, तो आपको पता रहेगा ना कि यार आपके पास कितने लोग हैं हर लॉन्च के लिए, हर पॉडकास्ट एपिसोड, हर नए वर्कशॉप के लिए, हर कोर्स के लिए, हर प्रोग्राम के लिए, ठीक है। फाइंड द सुपर लिस्टनर्स। मैं कुछ दिन पहले ना एक बुक पढ़ रहा था, सुपर फैंस बाय समवन, पैट फ्लिंक, या सो मैं पैट फ्लिंक की बुक पढ़ रहा था, सुपर फैंस, ठीक है। उनका कॉन्सेप्ट ये है सुपर फैंस का। जब मैं बुक पढ़ रहा था पैट फ्लिंक, इट वाज अबाउट सुपर फैंस, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट है कि इफ यू वांट टू बी अ बिलियनेयर ना, बिल्ड 1000 सुपर फैंस। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको एक बिलियनेयर बनना है, इफ यू वांट टू अर्न $1 million, you just need 1000 सुपर फैंस जिनसे आप 1000 रुपीज ले सकते, ठीक है। तो अगर आपको कोई $1000 दे रहा है ना आज, मतलब कोई आपका इतना चाहता है या फिर जो आपको बहुत फॉलो कर रहा है, आपके सुपर फैन उस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि आपको वो $1000 देने के लिए राजी तैयार है, ठीक है। तो जो यू आर बंदो जिंदगी, ठीक है, दे कैन डू एनीथिंग फॉर यू। इफ यू से देम कि यार मेरा पॉडकास्ट शेयर करो, 15 दोस्तों के साथ शेयर करेंगे,
जैसा अभी मैंने वर्कशॉप किया, कुछ लोग हैं मेरे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने शेयर किया, अपने दोस्तों को इनवाइट किया. So build those super fans, build those super listeners who listen to your podcast, listen to your conversation, everything. ठीक है? And find them. ठीक है? और ये कैसे फाइंड करोगे? जब आप engage करोगे अपने कंटेंट को, आप बोलोगे एंड में यार you can connect with me, I'm over to chat with you and I'll help you with that as well. जो जिस टॉपिक पे मैंने आज बात करी, और मैं उस पे आपको, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, you can ask me DM में. तो these are some of the ways you can find super listeners and with clarity. Guys, just tell me in the chat sections कि आपका clarity, आपकी लाइफ में clarity होना क्यों जरूरी है और why clarity is important. So यहाँ पे भी मैंने थोड़ी देर पहले ना ब्रांड पर्सोना की बात करी थी, ब्रांड मैसेज की बात करी थी कि आपका ब्रांड का मैसेज क्या है जो आप मार्केट में कन्वे कर रहे हो, राइट? अपने हर पॉडकास्ट में वहाँ पे अपनी से डाल रहे हो. आई एम हियर टू बिल्ड कम्युनिटी. Divyanshu, please mute yourself. Just a second. So, yeah. So आपको उसी तरह, अगर आपको क्लियर है ना आपका ब्रांड पर्सोना क्या है, वैसे ही आपकी जो ब्रांड की क्लैरिटी है ना, आपके लिसनर्स को भी इतनी ही साफ सुथरे तरीके से, सुंदर तरीके से क्लियर होनी चाहिए. आपने अपना ब्रांड पर्सोना जितने क्लियर तरीके से समझा था, आपने उसको आइडेंटिफाई किया था, उसको ब्रेक डाउन किया था, उसी तरह आपके लिसनर्स के क्लैरिटी, आपके ब्रांड की क्लैरिटी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है? आर वी क्लियर? फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ लेवरेज की, जो मैंने लाइफ में बहुत ज्यादा की. ठीक है? अब मैं बताता हूँ क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं. ठीक है? सो फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड, लेट्स से मेरे एक फ्रेंड है, मैं यहाँ पे एग्जांपल बहुत क्लियरली और बहुत सामने दूंगा आपको. ठीक है? आई हैव few friends with me. We have Shivansh. ठीक है? शिवांश इज माय फ्रेंड. ठीक है? और मैं शिवांश को बोलता हूँ शिवांश, आई नो वन ऑफ योर फ्रेंड नेम राहुल knows how to run ads on Facebook. Can you please help me connect with him? He'll never say no to me. I know him कि ऐसा नहीं करेगा, मेरा दोस्त है. ठीक है? So यहाँ पे लेवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, बेसिकली आप लेवरेज करते हो. यहाँ पे मैं सिर्फ लेवरेज की बात नहीं कर रहा, लेवरेज योर फ्रेंड्स नेटवर्क. ठीक है? If you know, like अगर आपको पता है कि, और अगर नहीं भी पता है ना तो पूछ लो. शिवांश, you know someone who can run ads better or perfect. So he'll say I have Rahul with me, run ads for me, so you can consider him. So that's how we leverage others network in a very simple way, in a single line. ठीक है? बाकी leverage आप क्या कर सकते हो ना, आपको भी नहीं पता. ठीक है? और मैंने लाइफ में बहुत सारी चीजें लेवरेज करी है. मैंने लेवरेज से मैंने न्यू क्लाइंट्स को अप्रोच किया है, मैं उनके नेटवर्क में आऊँ. अगर आप बिजनेस में होंगे और मार्केटिंग में हो तो आपको पता होगा कि लेवरेज कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों जरूरी है. इवन अगर आप एक पॉडकास्ट भी कर रहे हो, पॉडकास्टिंग की बात कर रहे हो, आप, मेरे को पता है शिवांश का एक फ्रेंड है जो कि बहुत बहुत ना, मतलब फेमस है यार, मतलब वो बहुत अच्छा ब्लॉगर है. ठीक है? मैं शिवांश को बोलता हूँ यार तूने अभी कुछ दिन पहले पॉडकास्ट किया था भाई, मेरे को कनेक्ट करवाते हैं. आई रियली फॉलो हिज वर्क एंड आई डोंट नो कि वो मेरा रिप्लाई करेगा या नहीं. अगर हो सकता है, इफ इट इज पॉसिबल, इफ देयर इज एनी वे यू कैन कनेक्ट मी विद हिम, दैट विल बी ग्रेट ब्रो. ठीक है? सो पावर ऑफ आस्किंग एंड राइट वे ऑफ अप्रोचिंग इज रियली इंपॉर्टेंट इन टू लेवरेज. हाँ, सो अभी हम वॉइस के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप वॉइस कुछ एक्टिविटीज कर सकते हो अपने वॉइस को डीप और अच्छे से बेटर करने में, स्पेशली ऑन पॉडकास्ट. सो हमारे साथ कामनी मैम भी है जिनकी वॉइस बहुत अमेजिंग है, ब्रिलियंट है, और भी काफी लोग हैं. सो हम वॉइस पे भी आते हैं यार. ठीक है? यहाँ पे लास्ट में मैंने लिखा है शो अप अगेन एंड अगेन, इट्स अ पार्ट ऑफ फॉलो अप. ठीक है? अगर आपको पॉडकास्ट के गेम में जीतना है ना, फॉलो अप करो, फॉलो अप. ठीक है? अगर आपने फॉलो अप नहीं किया, अब लेट्स से कि अगर मेरे को चाहिए यार, मैं पेटीएम के वीपी को मैंने उनको ईमेल भेजा है और उन्होंने मेरे को रिप्लाई दे दिया कि आयुष आई एम हैप्पी टू कम ऑन योर शो, आई एम डाउन ब्रो, लाइक आई विल कम एंड मैं आ जाऊँ. फिर मैं देखता हूँ कि यार मेरे को उनका रिप्लाई नहीं आ रहा, मैंने उनको दोबारा ईमेल भेजा, मेरे को रिप्लाई नहीं आया. ठीक है? लेट्स से हाइपोथेटिकली मेरे को रिप्लाई नहीं आया. ठीक है? तो आपको अगेन पूछना है, वहाँ पे आपको ईगो नहीं लाना बीच में, आपको पूछना है कि सर आई कैन अंडरस्टैंड यू मस्ट बी अवे फ्रॉम योर फोन और फ्रॉम योर मील अलाइनमेंट. सो लेकिन if you are free,
another weekend, we can reschedule it, we can, in a very humble, very good way. अगर आपको पॉडकास्ट करना है दूसरे के साथ, यहाँ पे शो अगेन एंड अगेन का दूसरा मतलब ये है कि अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हो ना, आप अपने ऑडियंस के सामने, आप अपने फ्रेंड्स के सामने, जो आपके ऑडियंस है उनके सामने बार बार, इट्स अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल, ठीक है. सो दैट इज वन अनदर पॉइंट, लास्ट पॉइंट टू विन द गेम ऑफ पॉडकास्ट. हाउ मेनी ऑफ यू नो टेक्निकल आयुष, or how many of you want to know the recipe of cooking the podcast? Take my money. I'll love to know that. Oh my god, lovely. Yeah, everyone wants to know how to cook podcast. Lovely. By the way, guys, for all the millennials who are with me, all the students who are with me right now, I have an opportunity for all of you. So stay tuned till the end. मजा आ जाएगा आपको, ठीक है? So let's start cooking podcast. So हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैलेंडर से. How many of you have ever used calendar in your life? खुद के लिए नहीं, किसी और के कैलेंडर पे कॉल बुक करी होगी. Maybe. Rajni, you have used? Okay, Prajwal, you have used that? Hello. Hi. I have not heard about that. Can you ठीक है. elaborate? Can you tell something about that? जी बिल्कुल. So it's basically a scheduling medium tool software, but you can say. So मैं आपको ना यार स्क्रीन शेयर करके ना आपको मैं exactly दिखा देता हूँ कि पॉडकास्ट ये कैलेंडर वर्क कैसे करता है. Allow me 30 seconds. You can now. Yes, bro. Yes. So मैंने भी कैलेंडर से सर्च किया है. I'm opening the same way. You can search calendly.com and you can open. ठीक है. So यहाँ पे बेसिकली साइन अप कर सकते हो आप अपने ईमेल के साथ, ठीक है. मैं अपना माई अकाउंट पे जाऊंगा बिकॉज आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ठीक है. तो आप साइन अप कर लोगे. मैं साइन अप नहीं करना सिखाऊंगा किसी को, ठीक है. आई फील एम्बैरेस्ड अगर मैं सिखाता हूँ, बट इट्स इजी, इट्स रियली इजी. सो हम आ गए हैं अपने कैलेंडर के अकाउंट में, ठीक है, होम पे. नाउ व्हाट वी कैन डू इज, मैं ना इसको अभी बंद कर देता हूँ, आपके सामने नया करता हूँ. ये मैंने ऑलरेडी एक कर रखा है इंटरव्यू विद आयुष, इसको मैं ना ऑफ कर देता हूँ, ठीक है. और मैं एक न्यू इवेंट टाइप क्रिएट करता हूँ, ठीक है. आप सभी लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको क्लियर नहीं होगा मैं दोबारा करके दिखाऊंगा. 1-on-1 ग्रुप मीटिंग. सबसे पहले मैं पिक करता हूँ 1-on-1, ठीक है. सो यहाँ पे इवेंट टाइप क्या है, इवेंट नेम क्या है. इवेंट नेम है पॉडकास्ट वर्कशॉप. That's it. लोकेशन नहीं, जरूरी नहीं डालना, नहीं, इन पर्सन मीटिंग, सॉरी, आई मीन इट इज नॉट इम्पोर्टेंट. डिस्क्रिप्शन अगर आप चाहो तो डाल सकते हो. यहाँ पे आपको जो लिंक है ना, इवेंट लिंक पे मिल जाएगी. नेक्स्ट करते हैं, मतलब ये सारी चीजें अगर आप डाल सकते हो, मैं यहाँ पे डालूंगा नहीं, ठीक है, ठीक है. इवेंट इज सेव्ड नाउ, ठीक है. व्हाट इवेंट इज दिस इवेंट इज पॉडकास्ट वर्कशॉप. यहाँ पे आ गया. When can people book this event? ठीक है, यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं. It's a 30-minute or 15-minute or 45 minutes. Let's go for 45 minutes. यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं इनफैक्ट डेज. इवेंट कैन बी शेड्यूल्ड ओवर 60 डेज कैलेंडर पे हम एडिट कर सकते हैं. टाइम जोन भी एडिट कर सकते हैं. अभी इंडिया का है. अवेलेबिलिटी क्या है, अप्लाई टू ऑल ट्यूसडे. लाइक अगर आप इफ यू आर अ प्रोफेशनल और मे बी अ स्टूडेंट जिनको सिर्फ ट्यूसडे की छुट्टी मिलती है ना, तो यू कैन अप्लाई फॉर ऑल ट्यूसडेज, ठीक है. अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है. जब भी हम स्केड्यूलिंग क्यों करवाते हैं, ठीक है, मेनली स्केड्यूलिंग का आपको काम तब पड़ेगा जब आप किसी और को बुला रहे हो अपने शो पे, एंड यू वांट हिम जस्ट बुक अ कॉल, ताकि आपके गूगल पे रिमाइंडर आ जाए और उनको भी आप सेंड ईमेल थ्रू कैलेंडर. सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा पॉडकास्ट वर्कशॉप का लिंक मिल चुका है, ठीक है. क्वेश्चंस पे ऐड करना है, ठीक है. क्वेश्चंस क्या पूछेंगे, नेम ईमेल के अलावा, इसको हम यहाँ पे एडिट करते हैं. मल्टीपल लाइंस यू कैन आस्क. यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है. अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो. अगर फोन नंबर है तो फोन नंबर के लिए भी आप मल्टीपल लाइंस इज ओके. लेट्स अप्लाई. यहाँ पे आप ऐड न्यू क्वेश्चंस पे ऐड भी कर सकते हो, ठीक है. नॉट ऐड एनी क्वेश्चंस. लेट्स सेव इट एंड यूज. नाउ द इवेंट टाइप इज ऑन. हम अपने होम पे जाते हैं. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ना एक नया इवेंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है. पॉडकास्ट वर्कशॉप 45 मिनट्स 1-on-1 पॉडकास्ट वर्कशॉप का स्पेशली लिंक मिल गया. कॉपी करता हूँ
नए टैब पे पेस्ट करके देखते हैं। सो आप इन दिनों मेरे साथ पॉडकास्ट बुक कर सकते हो। लेट्स गो फॉर 10:30 AM। मैंने 10 AM डाला था, तो 10 AM से पहले कोई नहीं कर सकता, राइट? कंफर्म नेम अब मुझे ईमेल आ चुका है, ठीक है? मेरे को फोन में भी ईमेल आ गया है कि अभी योर कॉल इज कंफर्म विद आयुष, ठीक है? सो इट्स दैट सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैनवा, ठीक है? गाइस, आर वी ऑल क्लियर? वी हैव 30 पीपल हियर। आर वी ऑल क्लियर? यस मैम, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग एज वेल। Okay, so I hope we are clear now. Now, yeah, मेरे को anyone of you haven't used Canva in the past, you can tell me. I'll show that as well. But I think it's easy. Canva can be used by anyone, even by a child. So Canva पे आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है? Canva.com पे आप जाके या फिर आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप Canva.com पे जाके कर सकते हैं, ठीक है? ड्रॉपबॉक्स पे हम फाइल शेयर कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। वी ट्रांसफर करते थे हम पहले। वी ट्रांसफर इट्स अ मीडियम ऑफ शेयरिंग फाइल, बट वो इंडिया में अभी कुछ दिन पहले बैन हो गया है। तो यू कैन यूज ड्रॉपबॉक्स, इट्स अ गुड वे ऑफ शेयरिंग फाइल्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस टूल पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी जैसे हम जूम यूज कर रहे हैं, ठीक है? और भी बहुत सारे टूल्स हैं रिकॉर्ड करने के। जूम के अलावा ज़ेनकास्टर है हमारे पास, दैट इज ओनली फॉर रिकॉर्डिंग ऑडियो, सो और ऑडियो के लिए जो है हमारे पास ज़ेनकास्टर है, जहाँ पे सिर्फ ऑडियो ही रिकॉर्ड होती है। यू कैन टेक योर गेस्ट एज वेल, ठीक है? तो आपको मैं शेयर कर दूंगा ये सारी चीजें। आप फेसबुक लाइव पे भी जाके कर सकते हैं, ठीक है? एंकर एफएम पे आप अपनी आईडी बनाई, आप अपना अकाउंट बना ही चुके हैं। मेलशिप कन्वर्टकिट ये ईमेल मार्केटिंग टूल है, अगर आप यूज करते हैं तो इस पे हम सेपरेट क्लास करवा देंगे डिजिटल मार्केटिंग अरबाज के थ्रू। तो आपको मैं ईमेल मार्केटिंग की क्लास, अगर आपको किसी को भी चाहिए तो वी कैन schedule over some weekend and we'll definitely try to do that as well, as I promised. So now the next thing you may need is coffee. How many of you need a coffee? I think that should be number one. I hope so. That's how we have presented a beautiful, lovely, delicious podcast. Guys, मजा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे ना? Great. Not at all. Ayush, great job so far. Yeah. Okay. Guys, if you want a break, you can, like, हम 5 minutes का break ले सकते हैं। वैसे तो हम 20 minutes में खत्म भी कर देंगे। If you don't need a break, then we can just finish it in like another 25 minutes maximum. Let me know if you need a 2-minute or 3-minute break. Okay, make money while doing podcast. I think I have not more to cover, guys. But so यार मैं आपको फटाफट बताता हूँ, ये जो पैसे कमाने हैं ना, जिसको भी पॉडकास्ट है, ये सबसे इजी है, और सब लोग सबसे ज्यादा टफ इसी को समझते हैं, ठीक है? आप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे फोकस करो, आपको पता चल चुका है कि कंटेंट कैसे बनाना है, ठीक है? नाउ यू नो हाउ टू बिल्ड द पॉडकास्ट टीम, यू नो हाउ टू क्रिएट कंटेंट, व्हाट टूल्स यू नीड, एवरीथिंग, राइट? बात करते हैं पैसे कैसे कमाना, ठीक है? वैसे तो बहुत सारे तरीके मैंने नहीं लिखे, मैं आपको 10 तरीके अभी बता सकता हूँ इसके अलावा। तो सबसे पहला तरीका ये है स्पॉन्सरशिप। आप कंपनीज को, ब्रांड्स को, पर्सनल ब्रांड्स को रीच आउट कर सकते हो टू स्पॉन्सर योर पॉडकास्ट। और मॉडल क्या होता है, मैं सिंपली समझाता हूँ। कॉस्ट पर इंप्रेशन मॉडल किया, ठीक है? कि आपके कितने इंप्रेशन आए, कितने लोगों ने सुना, क्योंकि आप वहाँ पे अगर स्पॉन्सरशिप दे रहे हो तो आप कुछ प्रमोट ये करोगे, राइट? और उस पर कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप उसे मोनेटाइज कर सकते हो, उसके हिसाब से आप उसे चार्ज कर सकते हो, ठीक है? Are we clear? Are you specify a little more about the impression and what you said? मैम, impression क्या होता है ना, if you have open your वो account आपका एंकर वाला, so you have seen कि how many people have listened your podcast and every stats if I say, so stats क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि कितने लोगों ने सुना है। तो impression वही होता है, कितने लोगों तक आप पहुंच सकते हो impression के बाद, कितने लोगों तक आप पहुंच रहे हो, ठीक है? Okay. Yeah.
relationships का मतलब यहाँ पे ये है like you can build relationships, you can monetize your relation, you can you know, और इसके बहुत सारे तरीके हैं relationships को monetize करने के, और जरूरी नहीं कि आप उसको monetize ही करो। अगर आप का ब्रांड है ना, मतलब अगर आप आयुर्वेदा में हो और आपका आयुर्वेदा ब्रांड मतलब प्रोडक्ट्स हैं तो आपको जरूर करना चाहिए, बिकॉज यू आर बिल्डिंग अ रिलेशनशिप बाय जस्ट बाय डूइंग अ पॉडकास्ट, और एट द एंड यू आर ऑब्वियसली सेलिंग योर प्रोडक्ट। ठीक है, मार्केट योर प्रोडक्ट और सर्विस। अनदर थिंग हियर कि लेट्स से मैं पर्सनल ब्रांडिंग करता हूँ, ठीक है, और मैं पॉडकास्ट पे कुछ पर्सनल ब्रांड्स को बुलाता हूँ, और कई बार क्या होता है कि दे वांट टू वर्क विद, और कई केसेस में हुआ भी है। सो दैट्स अ ग्रेट वे ऑफ यू नो मार्केट योर प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, प्रीमियम कंटेंट, कई बार देखते होंगे आप कि यूट्यूबर्स होते हैं जिनके प्रीमियम सब्सक्राइबर्स होते हैं, जिनके सब्सक्राइबर्स अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन होता है कि सब्सक्राइब और यू नो सब्सक्राइब फॉर प्रीमियम कंटेंट, ऐसा कुछ होता है, ऑप्शन है। तो वैसे ही आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेल रीपर्पस्ड कंटेंट। मैंने पहले भी समझाया है आपको कि रीपर्पस्ड कंटेंट क्या होता है, आप उसे सेल कर सकते हो। बहुत लोग अपने कोर्सेज बना के, वर्कशॉप बना के, वैसे तो मैं फ्री में कर रहा हूँ, लेकिन काफी लोग सेल कर। ठीक है, तो यू कैन एक्चुअली सेल अ रीपर्पस्ड कंटेंट। अब रीपर्पस्ड क्या होगा, अब मैंने कर लिया, ठीक है, अब एक बार बन गया, रिकॉर्ड हो गया, आई कैन सेल इट एनीवे। ठीक है, तो इसको भी आप सेल कर सकते हो, इसको भी मोनेटाइज कर सकते हो। स्टार्ट अ कम्युनिटी। ठीक है, स्टार्ट अ कम्युनिटी। ठीक है, आपको पता ही होगा यहाँ पे हमारे साथ शालिनी है, जिनसे मैंने कुछ दिन कल परसों ही बात हुई थी, राइट। तो वो कम्युनिटी हैंडल कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 20,000 ज़्यादा मेंबर्स की कम्युनिटी हैंडल करेंगे इन द पास्ट। सो आई नो कि कम्युनिटी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और कैसे बिल्ड करते हैं। आई वाज अ कम्युनिटी मैनेजर एट अवियारियस फर्म, और भी बहुत सारी चीज़ें हैंडल करता था इसके अलावा। सो कम्युनिटी के बहुत फायदे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। फ्यूचर ऑफ पॉडकास्टिंग एंड सम प्रेडिक्शंस बहुत जरूरी है सुनना आपका। ठीक है, और शायद आपको नहीं भी पता। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉग्स ओवर पॉडकास्ट। अभी हम लोग जो ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं ना, वो कल को पॉडकास्ट के फॉर्म में हो जाएगा कई हद तक। मैं तो कहूँगा कि 60 से ज़्यादा परसेंटेज तक ना ब्लॉग्स पॉडकास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी इंडिया में बताया, मैंने हैरी को बताया कि अभी 1000 आपको पॉडकास्टर्स मिल गए ना, मुझे बता दें 1000 से ज़्यादा आपको सर्च करने पे बहुत मिल गए, 2000 मिल गए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेगा ना, जैसे जैसे ऑडियंस बढ़ेगी, जैसे जैसे लोग और यूज करेंगे इंटरनेट, वैसे आपकी ऑडियंस ग्रो होती जाएगी। तो प्लीज गिव अप मत करो। ठीक है, मुझे खुद 1 साल हो गए पॉडकास्ट करते करते, मैंने जो ग्रोथ एक्सपेक्ट करी थी ना, मुझे नहीं, ऑनेस्टली बताऊं, मुझे 50% ग्रोथ मिली है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। इसीलिए मुझे इतना भी पता है कि मैं आगे और अच्छा करूंगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई एम कंडक्टिंग दिस वर्कशॉप, बिकॉज ऑफ द नॉलेज, राइट। आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ ऑफ न्यू फॉर्मेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। अभी कुछ ही चैनल्स हैं हमारे पास, स्पॉटिफाई, आपके अगर आपने एंकर पे लिख किया होगा तो आपको कुछ डिफरेंट चैनल्स पे वो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो बहुत सारी चीजें हैं जो होने वाली है, जो चेंजेस आने वाले हैं। पॉडकास्ट विल बी नोन फॉर रेलेवेंस। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात करी ना कि ऑफ स्क्रिप्ट विद सलील, जो पॉडकास्ट कर रहा है, जो सलील है ना, वो एक होस्ट है टीवी पे, वो वहाँ पे टीवी पे वो बातें नहीं कर सकता जो अपने पॉडकास्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, और आपको ये समझना चाहिए, और बिकॉज ऑफ दिस पॉडकास्ट विल बी नोन फॉर रेलेवेंस। ठीक है, मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा इसमें। नो बाउंड्रीज, एवरीवन इज वेलकम। ठीक है, यहाँ पे कोई किसी को रोक नहीं सकता। इलोन मस्क की बात करते हैं। कुछ दिन पहले न्यूज आई है कि इलोन मस्क बिल्ड्स म्यूजिक विद हिज न्यूरालिंक चिप। हालांकि अभी ये उसका टेस्ट चल रहा है मेरे ख्याल से, और विद इन 5-6 मंथ्स ना बहुत पॉपुलर हो जाएगा। इंडिया में भी 2 साल 3 साल में आ ही जाएगा होपफुली। Spotify will continue to grow and dominate the ears of Generation Z and Y in big ways. ठीक है? Now, how many of you want to know more about networking and want to learn more about networking? Shivansh bro, we did a podcast on networking, and I would love to share with all of you. Harshit bhai, I know, bro, I know. You're great at networking. Okay, let's start. We don't have much time. So यार नेटवर्किंग में ना सबसे पहले मैं बहुत जल्दी से इसको फिनिश कर देता हूँ। नेटवर्किंग आप किसके साथ करते हो?
अपने तरह के लोगों के साथ, ठीक है। आपको नेटवर्किंग हर किसी के साथ नहीं करनी, ठीक है। और मतलब नेटवर्किंग कर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, राइट, आप बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो नेटवर्किंग, तो आपको समझना है कि आइडेंटिफाई करना है कि किसके साथ नेटवर्किंग करनी है। सबसे पहले जो मैंने ऐड नहीं किया है, उसके बाद आता है रिसर्च, ठीक है। रिसर्च करो कि कौन है वो लोग, कैसे तक उन तक पहुंचा जा सकते हैं, चाहे वो लिंक्डइन मीडियम हो, चाहे वो आपका कोरा मीडियम हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। उसके बाद लिसन टू देयर कॉन्वर्सेशन विद अदर्स, लिसन टू देयर कॉन्वर्सेशन, सोलो कॉन्वर्सेशंस हो, पॉडकास्ट हो, वीडियोस, यू नो एवरीथिंग, जस्ट grasp their content, ठीक है, consume their content, that's very important if they are content creators, ठीक है। या फिर उनके आर्टिकल्स पढ़ लो, ब्लॉग्स पढ़ लो, उनकी बायोग्राफी पढ़ लो, अगर बहुत ही इज अ वेरी ग्रेट कैरेक्टर, ठीक है। स्टोरी टेलिंग यार, आपको ना कई बार नेटवर्किंग और उस पर्सन को अप्रोच करने में ना कुछ स्टोरीज शेयर करनी पड़ती है। लेट्स सी, एग्जांपल के लिए बता, आई वांट टू कनेक्ट विद कोई एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, कुणाल शाह की बात है, ठीक है, ही इज अ बिलियनर एंड आई वांट टू गेट इन हिज नेटवर्क, ठीक है, लेट्स सी। So मैं बोलूँगा I'll create a story around from how long I've been following him, how he impacted my life, how his ideas changed my life, you know, helped me in my journey. तो ये सारी स्टोरी टेलिंग मैं समझूंगा और क्रिएट करूंगा, और जो एक्चुअल में होगी अगर कोई है तो, ठीक है, तो मैं क्रिएट करूंगा, प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा, दे मे रिलेट कि यार हाँ इसको कुछ बेनिफिट मिला है, लेट्स अप्रिशिएट और लेट्स थैंक यू, ठीक है। अगर मैं रीच आउट करता हूँ तो स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी स्टोरी बहुत ज्यादा रिलेटेबल है, अगर कोई उस व्यक्ति ने आपको आपकी जिंदगी में बहुत प्रभाव डाला है, तो यू शुड लर्न स्टोरी टेलिंग, ठीक है। स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्यूटीफुल गिफ्ट गिवन बाय गॉड, सो कीप स्माइलिंग, शेयर योर पैशन। यार पैशन से ना लोग कनेक्ट होते हैं, ठीक है, और लोगों को आपको करना है, कनेक्ट तो करना है ना, लोगों के साथ आपको कनेक्ट करना है ना नेटवर्किंग के टाइम, चाहे आप इवेंट में हो, चाहे आप कहीं पे भी हो, जस्ट अभी आप मेरे साथ ही हो, अपना पैशन शेयर करिए, बहुत इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। एंड ऑफर देम समथिंग, डोंट सेल देम एनीथिंग, चाहे वो कोई छोटा व्यक्ति भी हो, चाहे कोई ऐसा, मतलब इन द फर्स्ट प्लेस, बट ऑफर देम, यार मुझे लग रहा है तुम भी नया बिजनेस ओपन कर रहे हैं, आई हैव सम पीपल विद मी इन माय नेटवर्क, इन माय टीम, अगर कुछ भी हेल्प चाहिए होगी बता देना यार, आई हैव पीपल विद मी एंड आई विल बी हैप्पी टू कंट्रीब्यूट इन योर न्यू बिजनेस आइडिया, समथिंग, ठीक है। बहुत सारे तरीके आप बहुत सारी चीजें आप ऑफर कर सकते हो, जो भी कर सकते हो, आपको करना चाहिए। इट्स अ ग्रेट वे ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू इनवाइट समवन ऑन योर शो, ठीक है, इसको भी बहुत जल्दी क्लियर कर देता हूँ। मुझे लगता है कि सबको इनवाइट नहीं करना होगा, प्रोबेबली नॉट एवरीवन इज गोइंग टू डू इंटरव्यू काइंड ऑफ कन्वर्सेशन काइंड ऑफ पॉडकास्ट, बट फिर भी कुछ लोग हैं। बी स्पेसिफिक, क्लैरिटी, हमने पीछे भी बात करी क्लैरिटी की, क्लैरिटी, स्पेसिफिक रहो। जिस टॉपिक पे आप बात करने वाले हो, मैं बात करने वाला हूँ माइंडसेट ऑफ अ मिलेनियल, मैं बात करने वाला हूँ कि एसर का लैपटॉप कैसा हो, मैं बात करने वाला हूँ कि मोटोरोला का फोन कैसा हो। बी स्पेसिफिक, ठीक है। रिसर्च वेल अबाउट देम, ठीक है, बहुत क्लियर, बहुत सिंपल सी बात है, रिसर्च करें, ठीक है, चाहे आप किसी को भी बुलाएं। राइट अ कंपेलिंग पिच। कुछ दिन पहले मैं अंकुर बारिक की वीडियो देख रहा था, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कैसे आपको ना कंपेलिंग पिच करनी चाहिए और कैसे उनको जो सब्जेक्ट लाइन होता है कैसा किस तरह का लिखना चाहिए ताकि कोई रिप्लाई करे, ठीक है। और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बताया था कि उनको खुद को ना डेली के 1000 ईमेल्स आते हैं, 1000 मैसेजेस आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किया था कि आपको ना बहुत छोटी सी चीज पकड़नी होगी, मैंने पकड़ी हुई थी, मैं बताता हूँ। मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी जिसमें वो बताते हैं कि मैं अपने ना कलीग्स के साथ लंच करता था, मेरा रिचुअल हुआ करता था जो मैं बहुत टाइम से नहीं कर रहा है, मिस कर। मैंने पकड़ ली उस बात, मैंने वो बात पकड़ ली, मैंने समझ लिया कि यार ही इज मिसिंग समथिंग। और अगर मैं उनके सब्जेक्ट में लाइन में लिखता हूँ कि लेट्स हैव, वो उनका यू नो लंच का कुछ नाम था, ठीक है, लेट्स से लंच विद कलीग्स, ठीक है, लंच विद फ्रेंड्स, तो मैं उनको ईमेल सब्जेक्ट लाइन पे डालूंगा लेट्स टेक आउट टाइम टू हैव लंच विद फ्रेंड्स, ठीक है। सो उस तरह से आपको समझना होगा, वैसे क्रिएट करनी सब्जेक्ट लाइन अगर आप पिच कर रहे हो। गिव देम इजी कॉल टू एक्शन, यार कोई भी नहीं चाहता कि मैं बहुत लंबा फॉर्म फिल करूं, ठीक है,
बस एक क्लिक में हो जाएगा, सब ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो कुछ या फिर आप उनको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, कॉल टू एक्शन अगर आपको बहुत ईजी करना है तो, या फिर अपना इंस्टाग्राम सोशल मीडिया लिंक दे दो, ठीक है। अगर आप ईमेल भेज रहे हो तो बहुत इजीली कनेक्ट हो जाओगे। गिव देम इजी कॉल टू एक्शन, कोई बहुत लंबी चौड़ी चीजें मत करो। डोंट फॉरगेट टू फॉलो, आपको सबको अब क्लियर हो चुका है फॉलो कितना जरूरी है। शेयर योर विजन अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका है कि आप अपना विजन कैसे क्यों शेयर करना चाहिए, और तभी लोग रिलेट भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड? हाय, हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड टू गेट योर फर्स्ट 100 listeners? सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यार, लिंक ओपन हो जाएगी, आपको मैं दिखा दूंगा। मैं आपको सबको भेज दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। मैं सभी को भेज दूंगा, ये भी मैं चैट में डाल दूंगा। ये आप अभी ओपन मत करना, बस कॉपी करके ना कहीं रख लो, ठीक है। आप ना दोबारा मैं भेज रहा हूँ, आप इसको कॉपी करके रख लो, ठीक है। बाद में रिक्वेस्ट भेज देना, ठीक है। मैं आपको भेज दूँ। आगे बढ़ते हैं, मैं ये समझाता हूँ। email your mailing list. The first thing you should do in the quest of getting your first 100 listeners is to email your list, ठीक है। उसके बाद update your signature. That's very important यार। अगर आपका signature बहुत अच्छा होगा ना, तो वो signature से ही सामने वाला समझ जाएगा क्या who you are. That's a part of building authority, and that's a great way of building authority. Share your social networks. अपडेट योर ट्विटर। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैं बहुत जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, ठीक है। शेयर इन फेसबुक ग्रुप्स यू बिलोंग टू, क्रिएट इमेजेस विद पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम टू शेयर ऑन इंस्टाग्राम, इंटरव्यू ऑल द अदर पीपल पॉडकास्टर्स इन योर कैटेगरी, ठीक है। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, you can unmute yourself, Ayushi and Sonal. Yeah, hi Ayush. Hi Sonal, how are you? Great that you were like, I can tell you, I mean, questions which we had, you just answered it, like many of them. Right. And secondly, I just want to add that, the thing that is lacking in me is consistency. We want things really fast. You just start something and it doesn't go well and you just stop it. I mean, I am good at writing, and many, like all my close ones have actually said me that I'm really good at writing, and you should do something about it, etc., etc. And I just start something and I just stop it, and I mean, and many people say that you're just wasting your talent or something like that. So this the problem. I know the problem is also what it is like consistency. I mean, you just don't get results, you don't get followers, and you just stop it. And then podcasting is something. I mean, I'm good at storytelling or something, whatever it is. So this is something new, and I don't want the same thing to happen. Like जो blogs में हो रहा है, वो मुझे यहाँ पे नहीं होना है. So that is my only concern. ठीक है, ये ना सोनल, यहाँ पे आपको एक चीज करनी है. You are not wasting your time. आपको consistency ही नहीं चाहिए. मैं बताता हूँ आपको क्या चाहिए. यहाँ पे आपको सिर्फ views चाहिए, ठीक है. Find a way to monetize this. Whatever you are doing, find a way to monetize this. ठीक है? Okay, right. Find a way as soon as possible. Okay, thank you so much. Yeah. I'll try. Yeah. That. So ये one-on-one podcasting है, मैं ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको शेयर भी करता हूँ. ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे टिप्स हैं. मैं आपको अभी जल्दी से दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा बेफिक्र होके. ये मैं शेयर आपको कर दूंगा, सारी लिंक्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा. All of you have my number, you can get in touch with me, you can schedule a podcast with me, you can call me or schedule a call with me. So हम आगे बढ़ते हैं. Guys, let me know in the chats. Are you excited to win the podcast game, or do you want to learn? So, do you want to learn digital marketing, branding practically, or do you want to work on live projects with our team, or do you want to work with influencers, actors, and a lot more? Because we have few actors working with us, right? Big companies as well. Okay, so there is an opportunity. I'm only taking 10 people. So this is basically an internship opportunity, and who is this for? Let's understand. Someone who wants to learn internet marketing, paid media, social media, and a lot more. Someone who wants to open their own company. Someone
who wants to save their money and time. Roles and responsibilities. What roles I'm looking for? Social media, graphic designing. Please stay. All of people, you have to stay because अभी Q&A भी बाकी है. हम 10 to 15 minutes का chat करेंगे अच्छे से. So अभी मैं इसको फटाफट close कर देता हूँ. Social media, graphic designing, copywriting, paid media, Google Ads, Facebook Ads, communication, BD, marketing funnels. I'm looking for everything. So anyone who is interested for this opportunity can text me, text Arbaz, because you are in the group, right? So आप किसी और को text मत करना, only who are admins, दो ही admin हैं, me and Arbaz. आप हमारे नंबर पे text कर सकते हो, ठीक है? WhatsApp कर सकते हो, ठीक है? Okay. And a lot more. So perks of this opportunity is like you will be getting a professional work experience and mentors. Get a chance to prove yourself and improve your skill sets. आपको soft skills की training भी मिलेगी and you will be able to build your professional network. Plus आपको digital marketing की training देगी, ठीक है? So it will be clearly transition into a job, ठीक है? So and by the way, it's a paid opportunity. So anyone who is interested for this opportunity can DM me or our team, and it's a paid opportunity for limited people, so make sure. Okay, now here something I want to share, like for to all the people who because मैंने commit किया था you will be getting a chance to join one show. So मैं आपको Calendly link दे रहा हूँ यहाँ पे, आप इस पे मेरे साथ कॉल स्केड्यूल कर सकते हो. मेक श्योर कि आप ना मतलब ट्राई करना वीकडेज पे रख लो, बट रात के शाम के टाइम में, ठीक है? तो हम शेयरिंग बाय कैलेंडर लिंक, तो ट्राई 7-8 बजे के बाद रखने का ट्राई, ठीक है? एनीवन हु वांट्स टू बुक अ कॉल विद आई वांट टू हैव यू ऑन द शो, ठीक है? थैंक यू एवरीवन. वन मोर थिंग गाइस, जस्ट होल्ड ऑन फॉर 10 more seconds. I have something. मैंने आपको अभी आप सभी को इंस्टाग्राम के लिंक दी है. आप अपने रिव्यूज शेयर कर सकते हो, मुझे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताइएगा प्लीज. इंस्टाग्राम के लिंक पे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. We have 26 people here. Let's see कि कैसा आपका ऑनेस्ट रिव्यू रहा. I would love to hear that. आराम से आप कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो. हाँ जी इशिका बताइए. I have 2 questions. एक तो marketing related कि I just a month ago I started with a podcast और वैसे ही एक एंकर पे डाल के फिर Spotify पे जा रहा है वो, बट उसकी मार्केटिंग लाइक मैं प्रमोशन उसका ज्यादा से ज्यादा कैसे करूँ? एक तो आपने बताया कि सोशल मीडिया, सो इज दिस द ओनली वे कि मैं अपने सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम और हर जगह डालूं मतलब क्रिएटिव्स बना के, तो उसी तरह से या और कोई भी मेथड है? I started one more I thought of one more thing कि मैं YouTube चैनल स्टार्ट करूँ, क्योंकि YouTube मतलब उस पे रीच ऑब्वियसली ज्यादा है अभी पॉडकास्ट ऐप से. तो उस पे जैसे वीडियो लाइक वो कवर आएगा और उसके पीछे वो ऑडियो आती रहेगी पॉडकास्ट की. तो एक वो मैंने सोचा है, बट और कोई हो आपके पास आइडिया? बिल्कुल. मैंने काफी आइडियाज के बारे में वैसे बात करी और इनफैक्ट मैं आपको ना रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, बट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ आपको क्या करना है, ठीक है? आपको सुपर फैंस बनाने, अपने लिसनर्स को कन्वर्ट करना है फॉलोअर्स में, अपने लिसनर्स को कन्वर्ट करना है फॉलोअर्स में, चाहे 15 लोग सुने, ठीक है? उसके बाद अपनी ईमेल लिस्ट पर फोकस करें, अपनी ईमेल लिस्ट डेटा कलेक्ट करें. लिंक कहीं पे भी आप पूछ सकते हैं. एनीवन हु वांट्स टू सब्सक्राइब टू माय पॉडकास्ट, I do weekly podcast, let's say, or I'll send you link on your email. So okay. These are some of the good ways. Yeah. And also one more thing, जैसे एंकर ऐप में यूज कर रही हूँ तो उसमें जैसे स्टैट्स हम एनालाइज करते हैं कि कितने लोगों ने सुना, बट वो सब खाली एंकर ऐप का आता है. लाइक स्पॉटिफाई पे जिन लोगों ने फॉलो किया होगा वो मुझे नहीं पता चल रही या कितने लोग सुन रहे हैं एक्चुअली. तो उसका आपको कुछ पता है, लाइक टेक्निकल चीज ये कि क्या? नहीं, अगर आप एंकर से करोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा. वो एडवांस चीज है, जैसे लाइक आपको ना उसके लिए RSS फीड और प्रॉपर पॉडकास्टिंग के लिए मतलब आपको थोड़ा सा वेबसाइट वगैरह भी चाहिए होगा. तो फिर आपको प्रॉपर स्टैट्स और एडवांस स्टैट्स पता चल जाएंगे और बहुत सारे टूल्स भी है मेरे ख्याल से. तो वो हो सकता है मैं नेक्स्ट वर्कशॉप में कवर करूँ या फिर उसके लिए मैं कुछ ई-बुक वगैरह बना दूँ, तो मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा एडवांस अगर आपको चीजें सीखनी है. ओके. Thank you so much, and this workshop was really very interesting and helpful. Thank you.
Thank you so much for attending. आयुष भाई, हाँ जी. जैसे कि मुझे मेरी जर्नी शेयर करनी है, लेकिन मेरे पास मतलब इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कोई भी फॉलोइंग नहीं है. तो जो मेरे पहले लिसनर्स होंगे, जैसे कि अगर मैं कल ही अगर स्टार्ट कर दूं अपना पॉडकास्ट, तो मेरे पास कोई लिसनर्स ही नहीं रहेंगे. और जिस तरीके का मैं टॉपिक करने वाला हूँ, उसके लिए मतलब मुझे पहले लिसनर्स चाहिए ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूँ स्टोरी को. जैसे कि मैं जर्नी एपिसोड्स बनाने वाला हूँ. तो अगर मैं अभी अगर स्टार्ट कर दूं और मेरे 10-12 एपिसोड्स बन जाए, फिर उसके बाद अगर मेरी फॉलोइंग बाद में बढ़े, तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे मुझसे, क्योंकि उन्हें पहले से एक सुनना पड़ेगा एपिसोड. हाँ, तो यार वही चीज है कि मैं रिपीट कर रहा हूँ. 2 चीजें यहाँ पे. एक तो ईमेल लिस्ट बनाओ. अब अगर आपके डेटा को आप यार ईमेल भेजोगे ना हर हफ्ते में एक ईमेल, तो डे 1 ईमेल, पॉडकास्ट 1 ईमेल, पॉडकास्ट 2 ईमेल, दैट इज वन थिंग. दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि प्री लॉन्च करो. हाँ, सो प्री लॉन्च में क्या होता है ना यार, आपको सब आपके फ्रेंड्स को, जो लोग लिसनर्स होते हैं जो सुनना चाहते हैं, दे आर एक्साइटेड, तो वो आपको बता देते हैं और वो आपकी लिस्ट ऑलरेडी ज्वाइन कर लेते हैं, जो एक ईमेल लिस्ट होती है. ठीक है, सो 2 ways. बाकी वी कैन गेट ऑन अ कॉल और प्रॉपर डिस्कस करेंगे, बिकॉज़ आई डोंट नो अ लॉट मोर थिंग्स अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू. सो एक बार प्रॉपर डिस्कस कर लेंगे ऑन कॉल. ठीक है guys, I'm open to chat. Please don't hide your face here. Hi, I'm back again. No worries. Like last, जैसे मैंने YouTube का बताया था, so what do you think, is this a good idea, like YouTube channel बनाना for a podcast? Okay, thank you. Go for it. Okay. Okay. बाकी लोग आज बात नहीं करना चाहते हैं मेरे से. Okay. Guys, by the way, if you are, I can see few students here who must be excited for the opportunity, for the internship opportunity. So you can get in touch with Arbaz or me or anyone in our team. So yeah. I have one question, Ayush. I'm so sorry. Yes, sir. Please tell me. Arbaz this side. Okay. So even I was trying to do a podcast myself, but so I was confused whether I should script it, like I should write it down, the entire content for the first, before I do my podcast, and then read it and record it, or just go with the flow and hit the record button and go with the flow. Like what generally works for you and what generally works for the podcasters. That's what I would like to know. Because if you want me to go with the flow, then I'll be going a lot of off topic. If someone asks, if I'm talking about one thing, I probably will rant about that thing for the entire podcast. So I don't want that. I want structure to come in. So how do you think, like, what should be the best way to start a podcast? Whether we should create a script for ourselves, or we should just hit the record button and get going? None of them. There is another option, which is best option, and the option is make pointers. Don't make a script. Don't record कि ऐसे यार मैं बैठ के record कर लेता हूँ. Just make some pointers और उस पे बात करो. फिर जैसे अभी मैंने यार you can see कि PPT में कुछ नहीं था. PPT में सिर्फ pointers थे और मैंने वही explain किया ना. So that is why I saved my time कि मेरे को PPT बनाने में 50 पेज की PPT मिनिमम में चाहिए. अगर मैं हर सब कुछ समझा देता PPT से, लेकिन मेरे को तो समझाना था खुद से. Just like you mentioned, you want to do podcast. So make pointers and ऐसे करो, सही होगा. So I think the bullet points is something that we should start doing, like write down the bullet points. Or probably if there might be sub bullet points as well, so there might be major pointers which will be the key structure of the podcast. Uske baad there will be sub pointers within a podcast. If I want to take an example, so I should have this structure in mind. Okay, I'll talk about this example for like 10 seconds, then I'll have to skip this example. So I think that structure will come in once we do a lot of podcasts regularly. And we'll get to know, okay, now we are wasting our time on examples, and people might lose their interest. So I think that there's one thing that we should remember.
and I'll also try to incorporate that as well. Soon you'll be seeing me doing a podcast. So. Okay. I'm very excited, right? Because I know what content you have. Also, tell us about this celebrity podcast. You're working with a lot of celebrities. Yeah. So if I join your internship, so what type of how I can interact with them? What type of knowledge sharing will be there? What experience? Are you talking about the internship? Yeah, internship and that opportunity to work with you. Right. So Arbaz, yeah. So Arbaz, internship opportunity when we have people. I recently started my own company, and I have few people with me, and I have few influencers, actors. Rohit Bharadwaj from Mahabharat. I have few other actors as well. So you will be getting a chance to work directly with them, and I will be helping you. I will be monitoring all the things you will be doing, and I'll train you at the same time. That's I think that will be amazing. So I think now only 9 spots are left. Okay. Oh my god. Okay. Because you know me, right? You are the co-host, man. You are the co-host. Okay. So Shivansh, यार क्या time क्या हो रहा है bro वहाँ पे? You're awake in night? It's 9:42 p.m. So yeah, not too late. Okay. And you did a great job, man. It was a wonderful session. Coffee interactive. Happy to see you working hard. Got two questions. So I haven't been posting much, if you've noticed, neither on my Instagram nor on my podcast. So I've got like exams going on and kind of just like waved off. But from your own experience, like what do you think starting May, what should be the average, like the average duration of your podcast episode if you're doing it solo? Because I think like when you're just starting out, if you ran for an hour or maybe half an hour, it might make people lose interest towards the end. So like from your experience, or what do you think when you're beginning, should we have a time limit for the episodes if you're doing it solo? Yes. Time limit should be under 20 minutes or so. Under 20? Yeah, under 20 minutes. If someone is opening a podcast, and if someone is opening a podcast to listen to a podcast, they will be listening, right? वो सुनेंगे. They are there to listen. But वो 19-20 मिनट से ज़्यादा नहीं. That's right. And for any just one question I have, like do you have any content strategy for start first 10 seconds or 20 seconds or 30 seconds, like if you are doing an intro in a podcast? So is there a structure which we should follow so that people are compelled to listen the entire podcast, or it should be the generic scheme of things that we are planning to do, like the general things, general production? So कई लोग क्या करते हैं ना कि कुछ जो बेस्ट पार्ट होते हैं ना कॉन्वर्सेशन की, कि किसी ने पैसे की बात कर ली, कई बार वीडियोस में हम लोग देखते हैं कि जो बेस्ट पार्ट होते हैं वो लोग शुरू में एकदम से लगा देते हैं 10 सेकंड्स के लिए कि यार इंटरेस्ट बन जाए, नहीं भी बना तो भी बन जाए, ठीक है? उसके बाद फिर बंदा वो सुनता है, वेट करता है, वो पॉइंट कम आएगा और फिर पूरी कॉन्वर्सेशन सुन लेता है. दैट्स वन थिंग. उसके अलावा आपका अगर इंट्रो म्यूजिक बहुत अच्छा है, इंट्रो म्यूजिक में अगर कुछ बोल भी रहे तो भी और अच्छी बात है. दो चीजें. Which tool do you use to edit your audio files? Like, is there any tool that we use to edit? Bro, वीडियो एडिटिंग के लिए तो वैसे मैं अपने ब्रदर से करवाता हूँ, बट एंकर में ना एडिटिंग के लिए है ऑप्शन, बहुत ईजी. अच्छा. Okay. So if I want to introduce, have some intro music or some theme music, right? You'll see some interludes and some soft music in anchor. Okay. Yeah. Hanji Shivansh, you have one question. I forgot. Oh, yeah. I was saying that I'm definitely going to talk to you after the session about the internship, because my next semester is not going to start until 1 month. So definitely I'm free. I didn't know about it. And when did you start with like your own agency? Bro, it's been around 1.5 months. I got confidence after getting good clients. I closed like 5 clients in 5 days. So in just 5 days, so मुझे थोड़ी हिम्मत मिली, bro. Otherwise, इतना easy नहीं होता है, to start your own agency or something like that. Absolutely. Yeah.
Where did the name came from? Like when I heard it, like is it your initials A, Y, and then like how did you come with the name? So that's basically Greek word which means yes. So for all the personal brands, I say yes. So that is I brands. That is yes brands. That's a good brand line as well. Like it's a good tagline as well. All right. I gotta leave. Thank you so much for this. Yeah. And Thank I'll you. just quickly like just say if anyone is into self-help or personality development, public speaking. So my Instagram is my_uncooked_. Wow, it's my uncooked thoughts, man. I gotta remove the underscore. So I'll be happy to connect with anyone who is into same niche and keep up the work, Ayush. And I'm definitely gonna talk to you after this session. Thank Okay, you, bye. Thank you. Thank you so much, Ayush. Thank you for taking out time and doing this for us. Really appreciate it, man. And let's see how things goes ahead. Really excited for the second episode of this workshop. I know you are busy, but I'll insist to do it for another workshop next month or this month. We'll do in a month. Okay. So any other thing? Anything else left? Any question, Harshit, Dhyanvi, आयुषी, Rajni, सिमरन वैसे तो तुम शांत नहीं रहते आई नो. Count me in. So Sonal is saying that you can count her in. Shalini is saying that count her in for the workshop. For the workshop or the internship, right? I got the message. Yeah. Okay. Okay, guys. Thank you so much for taking out your time, guys. I know it's been 2 hours since Sunday, and really nice knowing all these criticalities of podcasting. I was not aware of any of these, so it was really a value add to my time, and really looking forward to how it goes forward with Ayush, and really looking forward for another episode of podcasting. Till then, keep podcasting, keep interacting with us. We connect with Ayush. Is the Instagram handle for Ayush. You just connected with Ayush. Yeah. If you want to connect with Ayush, just tell Instagram that you want to connect with Ayush. They will get you connected. And if you want to learn marketing, it's just learn marketing. So very simple things to remember, I believe. Okay, guys. Thank you so much. Thank you. Bye, everyone. Bye. Bye, guys. Take care. Stay safe.